Good evening, everyone. Welcome to Ganga Jamuni's season 2 of Facebook Live series. We call this Varsha Mangal, and we try to bring you aspects of Indian culture and art tradition that are associated with the monsoon. Today's topic, as you all know, is Baulis. Now, Baulis are variously called in India as vows or Bauri, the step wells. The reason why we've had this is not, this kind of an architectural feature and such great importance given to this kind of an architectural feature is it doesn't require much of a guess because monsoon in India is of a short duration and it's very unpredictable, getting more so, and it's just when you travel to Rajasthan and Gujarat, you realize the importance of water and you realize how scarce that scarce water is. So for centuries, Indians have constructed these artificial lakes and they have had these step wells that hold the monsoon water or the monsoon rain. In Delhi, which is also a arid region, we've had a tradition of step wells and baulis. We've also had this famous tank around which the Hauz Khas area is known. So many of you probably know of Agrasen Bauli, Gandak ki Bauli, or there are many others which I think we should allow our guests tonight to speak about, and I won't take much of your time. So let's welcome Vikramjeet Singh Ruprai. Vikram is, hello Vikram, good evening. Good evening. Vikram used to be in the IT sector, as I understand, and he was, from being a software person, from an IT person, he found his calling in heritage, and he is a heritage activist and also an author of a book called Baulis, which I believe is a bestseller. Vikram, congratulations there. Thank you. Thank you. All right. So, how are you doing? I'm doing good. How are you? Good. So, Vikram, it rained where I am today. Did it rain where you are? Interesting. I don't think, I shouldn't be calling it rain. There was a short drizzle for a few minutes and that's it. Same. So I feel very bad about this because I wish we could have more rains, and this year they've been rather bad, haven't they been? Yes, exactly. There should have been more. Certainly. तो आप आज हमें एक जर्नी पे लेके जाएं विक्रम, क्योंकि हम लोग सबके सब जानते हैं कि बावलियां हैं दिल्ली में. हमने तस्वीरें देखी हैं, बहुत फेमस तस्वीरें, बच्चे कूदते हुए बावलियों में बारिश के वक्त. और फिर उसके बाद में देखिए श्वेता मोहल्ला आई हैं, बोल रही हैं कि विक्रम इज टेरिफिक. So already you're getting this response. Let Vikram speak. I suppose Vikram, you have to show me how terrific this conversation will be. But before that, I just want to say, हमको एहसास होता है कि किस तरह से ये बावलियों का इम्पोर्टेंस है, और ये एक पुराने जमाने की एक आर्किटेक्चरल फीचर नहीं है. ये मुझे लगता है एक तरह से आप इस चीज की जरूरत हमेशा ही रहेगी, खास करके दिल्ली, राजस्थान और जितने भी गुजरात जैसे एरिड रीजन्स हैं. तो आज आप हमें बताइए कि कहाँ कहाँ हम लोग ये बावलियां देख सकते हैं और कब कब ये बावलियां बनी दिल्ली में और क्यों बनवाई गई, और आज की डेट में इनका क्या हाल है. देखिए, बावली का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप पीछे हड़प्पन एरा के अंदर जाएंगे तो हड़प्पा मोहनजोदारो के अंदर जो ग्रेट टैंक्स बने, मोहनजोदारोज ग्रेट बाथ नाम हमने बहुत मशहूर कर दिया. हालांकि उससे 3 गुना बड़ा बात दिल्ली अपना ये गुजरात के धोलावीरा में है. ये जितने भी इंडस वैली की सिटीज थी, सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर बने थे, उन सब के अंदर इस तरह के टैंक बनाए गए थे जिनमें सीढ़ियां उतरती थी नीचे वाटर लेवल तक जाने के लिए, या वाटर लेवल में भी काफी अंदर तक जाने के लिए, ताकि पानी का लेवल अगर ऊपर नीचे हो तो मैनेज हो सके. तो ये जो कॉन्सेप्ट है पानी को एक जगह स्टोर करने का और सीढ़ियां बना के पानी के लेवल तक पहुंचने का, ये कोई आज का नहीं है. ये 4000-5000 साल पुराना है. बीच में एक बहुत बड़ा पीरियड आ जाता है जब हम इस प्रैक्टिस को बंद कर देते हैं. उसके बाद जब दिल्ली दोबारा से एस्टैब्लिश होती है, खैर दिल्ली का एक पूरा इलाका जो है वो एक तरीके से उजड़ ही चुका था, और अभी आर्कियोलॉजिस्ट दे हैव बीन डूइंग ऑल दीज एक्सकेवेशंस, और हमें पता चला है कि नहीं,
ये सिंधु घाटी के टाइम से ये जगह भी आबाद है, यहाँ भी छोटी छोटी बस्तियां हुआ करती थी, और ये छोटी छोटी बस्तियां थी, बड़े बड़े शहर नहीं थे। जब तोमर आते हैं तो तोमर यहाँ पर आके एक बहुत बड़ा टैंक बनाते हैं जिसे हम अनंग ताल कहते हैं, विच इज इन संजय वन राइट नाउ, लालकोट के साइड में जी बिहाइंड माय टेम्पल वी हैव दैट टैंक। हाउएवर वो एक टैंक है, उसको टेक्निकली बावली नहीं कहा जा सकता, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टैंक एंड अ बावली। तो जैसे हमारे पास हौज रानी, हौज खास, हौज शमसी और नीला हौज, ये सारे हौज आते हैं, वैसे ही एक पुराना जो है वो एक टैंक हमारे पास अनंग ताल आ जाता है। बावलियां जो दिल्ली में हैं उनके अंदर कुछ खास एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से या जिसको हम प्रॉपरली बावली कह सकते हैं। अभी दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूंगा, उसमें एक कुआं बनाया जाता है और कुएं के साथ सीढ़ियां बना दी जाती हैं जो आपको नीचे वाटर लेवल तक ले जाती हैं। इनफैक्ट मैं क्या करता हूं, मैं व्हाई डोंट आई शेयर माय स्क्रीन, आई कैन शो यू अ डायग्राम व्हिच आई हैव यूज्ड इन माय प्लीज डू the book also. Let me pull it up. Just give me 1 second. Come on. Yes. now I know why Okay. Shweta calls you terrific. Okay, so we have a well, we have a tank or a basin next to it. अब कुआं जो है, कुआं नीचे कन्फाइंड एक्विफर तक जा रहा है, तो जिसे हम बोलते हैं वाटर टेबल, दैट इज द कन्फाइंड एक्विफर। नीचे ऊपर जो आप अनकन्फाइंड एक्विफर देख पा रहे हैं, अनकन्फाइंड एक्विफर इज एक्चुअली जो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे हम अनकन्फाइंड एक्विफर बोल देते हैं। और जो टैंक है वो कुएं के साथ कनेक्टेड होता है, लेकिन टैंक नीचे कन्फाइंड एक्विफर तक नहीं पहुंच रहा। अब इसमें जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिली। जो हमारा टैंक है, क्योंकि वो नीचे अंडरग्राउंड वाटर टेबल तक नहीं जा रहा है, तो वहां पर अगर कोई नहा धो रहा है, कपड़े धो रहा है, कुछ भी, वो पानी गंदा हो रहा है, वो पानी नीचे जो वाटर टेबल है उसमें मिक्स नहीं हो रहा। कुएं में पीने का पानी रहेगा, टैंक में गंदा पानी रहेगा, और टैंक से पानी कभी भी कुएं में नहीं जाएगा। ये भी एक बहुत मजेदार चीज है। इफ यू लुक एट दिस वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स व्हिच इज द कांसेप्ट ऑफ प्रेशर, दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, यानी कि जितना खुला एरिया होगा प्रेशर उतना कम हो जाएगा। तो कुआं जिसका मुंह छोटा है उसमें प्रेशर ज्यादा है, और टैंक जो कि बहुत बड़ा एरिया है उसमें प्रेशर कम है, तो पानी कुएं से टैंक में जाएगा, वापस नहीं जाएगा। तो विंडो को, जो कुएं और टैंक के बीच में जो एक छोटी सी विंडो है, उसे जमीन से थोड़ा ऊपर रख दिया जाता है, ताकि अगर स्लज या गंदगी जमा भी हो रही है वो नीचे नीचे हो जाए। और हर थोड़े टाइम के बाद कुएं बावलियों की सफाइयां तो होती थी। दूसरी चीज, हम लोग 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ लेते हैं सेडिमेंटेशन या सैंड फिल्ट्रेशन। सैंड फिल्ट्रेशन ही यहाँ पर भी यूज हो रही है। बारिश का पानी, बारिश पड़ रही है, आसपास का कैचमेंट एरिया है, वहां बारिश पड़ रही है, पानी जो है वो सारा सिंक के नीचे जा रहा है और नीचे इकट्ठा हो रहा है, वो रेता से एक्चुअली फिल्टर हो रहा है। जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था तो मैं काफी हैरान हुआ देखकर कि यमुना के किनारे जितने शहर बसे, जो किले हैं, शहर हैं, सब में कुएं और बावलियां बनाई गई, और यमुना से बिल्कुल सटी हुई। तो मैं हैरान इस बात से था कि जब यमुना है तो आप कुएं बावलियां क्यों बना रहे हो? अब यमुना से पानी भर लीजिए, घाट भी बने, मतलब बावली के बगल में घाट बना हुआ है, घाट से उतरिए, भर लीजिए। तो फिर मुझे काफी ये मैं चीज अपनी किताब में प्रॉपरली नहीं लिख पाया, क्योंकि जब मेरी किताब लॉन्च हो रही थी उससे कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात एक शख्स से होती है जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने मुझे ये बताया, साइंटिस्ट, उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअल में गंगा और यमुना के अंदर जो ऑक्सीजन का आइसोटोप है वो बॉडी के लिए डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, प्लस इसमें और ऐसे बहुत सारे मिनरल्स मिक्स हो चुके हैं इस पानी में, जो अगर आप डेली कंजम्पशन करते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। एंड दैट इज व्हाई गंगा और यमुना के पानी को डेली कंजम्पशन के लिए डायरेक्टली नहीं यूज किया जाता था, सैंड से फिल्टर करके यूज किया जाता था। तो गंगा किनारे, यमुना किनारे कुएं बावलियां बनाए गए थे कि पानी छटकर आए और फिर उसका जो है वो हो। अब ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मुझे मिला, लेकिन इससे भी जो इंटरेस्टिंग चीज मुझे मिली वो ये थी कि दिल्ली में जितनी भी बावलियां बनी उन सब की डायरेक्शन वो सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करती हैं। तो अगर मैं आप लोगों को एक कंसोलिडेटेड इमेज दिखाऊं, so this is a consolidated diagram of all the Baolis at least that I have mentioned in my book. There are 32 Baolis in Delhi, जिसमें से करीब 15-16 हैं जो अभी भी मौजूद हैं। इन 15-16 में 12 हैं जो आप एक्सेस कर सकते हो, कुछ लॉक्ड है, कुछ ओपन है। सो मेरी जो किताब है दिल्ली हेरिटेज टॉप 10 बाउलीज,
मैंने टॉप 10 का जिक्र किया है, 2 स्पेशल मेंशन उसमें डाल के 12 पूरी कर दी हैं, और 2 और हैं जो तुगलकाबाद में, बट वी कंसीडर देम एज टैंक्स। आर दे टैंक और दे बाउली, दैट इज अ सेपरेट डिबेट, तो अभी मैं उसमें नहीं जाता। बट अगर आप ध्यान से देखें, सभी बाउलियों में जो एरो लगा हुआ है, या तो वो नॉर्थ टू साउथ है, अगर किसी केस में साउथ टू नॉर्थ है या साइड से है, तो वो बाउली ऊपर से आधी छती हुई है, उसमें छत डली हुई है जहाँ टैंक है। तो जो पहली कोटला फिरोजशाह बाउली है, वो ऊपर से बंद हुआ करती थी, तो उसमें साइड एंट्रेंस है। लाल किले की बाउली में भी एंट्रेंस नॉर्थ से है, एक साइड एंट्रेंस भी है। रिच बाउली, हजरत निजामुद्दीन, ये सब हमारे पास नॉर्थ से एंट्रेंसेस आ रही हैं। अग्रसेन की बाउली में हमारे पास एंट्रेंस दूसरी साइड से है, जिसमें कि अग्रसेन की बाउली में टैंक के ऊपर जो है वो छत डली हुई है। पुराने किले के अंदर जो बाउली है, उसका भी रास्ता साउथ की तरफ से, लेकिन इसमें भी ऊपर छत है। सो जब मैं इसको रिसर्च कर रहा था और इस पर पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा ही क्यों, सबकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ ही क्यों है, तो एक और बहुत मजेदार साइंटिफिक एस्पेक्ट मुझे देखने को मिला यहाँ, वो ये कि जितनी जो दिल्ली है, दिल्ली ग्लोब पे अगर देखें हम, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर से काफी ऊपर है ये। इक्वेटर तो इंडिया से बहुत नीचे समंदर के बीच में से निकल जाता है। तो जो सूरज की रोशनी पड़ेगी किसी भी टाइम पे, चाहे वो दोपहर के 12 बजे हो, कभी भी है, बिल्कुल सीधे 90 डिग्री पे नहीं पड़ेगी, वो साउथ की तरफ से थोड़ी सी टेपर रेज आएंगी। तो अगर एक एंगल पे रेज आ रही है, और अगर मैं जो गहरा हिस्सा है वो साउथ की तरफ रखूंगा, ऊंचा हिस्सा नॉर्थ की तरफ रखूंगा, तो सूरज की रोशनी सीधे पानी तक नहीं पहुंच पाएगी, तो उससे पानी गर्म नहीं होगा, जल्दी उबलेगा नहीं। तो आप किसी भी मौसम में, किसी भी महीने में आ जाइए, किसी भी वक्त आ जाइए, पानी आपको ठंडा मिलेगा, वहां पे छाया मिलेगी। तो इसलिए बावली के दोनों तरफ कमरे बना दिए जाते थे, लोग उनमें आकर बैठते थे। बल्कि एक तो बावली ऐसी है जिसमें लोग रहने लग गए थे परमानेंटली, जिससे उसको उसका नाम मिला राजों की बावली। तो जो महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में राजों की बावली है, मैं बल्कि उसकी भी आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा जी। तो राजों की बावली के अंदर बाकायदा राज मिस्त्री रहा करते थे। बहुत से लोग सोचते हैं कि राजों की बावली है तो जरूर ये बावली जो है वो राजा ने बनाई होगी। राजा ने नहीं बनाई, दौलत खान था जो इब्राहिम लोदी का गवर्नर था, उसने बनाई थी। और इसमें जो आप आर्चेस देख रहे हैं, इनको आगे के जमाने में अंग्रेजों के टाइम पे बंद कर दिया गया था, इनमें लोग रह रहे थे, और ये सब राज मिस्त्री थे, मेसन्स थे, कारीगर थे, जिससे इस बावली का नाम पड़ गया राजों की बावली। राइट। तो इस तरह के और बहुत मजेदार मजेदार किस्से हैं जो 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 साइंटिफिक एस्पेक्ट है बावलियों का। मुझे सबसे, खैर पर्सनली तो मुझे सबसे ज्यादा वही एक्साइटिंग लगता है कि कैसे बावलियां जो हैं वो बनती थी, और उनके आसपास की जो कल्चर है, लोग जो उनके आसपास एक कल्चर डेवलप कर लेते थे। बल्कि एक मैं और छोटा सा किस्सा आपको सुनाना चाहूंगा। दिस हैपेंड विद मी इन 90s। सो 90s का दौर था, और मैं मतलब मेरी पैदाइश बाहर की है, मिडिल ईस्ट की है। तो 90s में हम इंडिया आ चुके थे, और मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में तब घुमा रहे थे, हम लोग कहीं ना कहीं जाते थे। तो मेरी बुआ जी जो है वो पंजाब में रहती थी, तो उनके पास हम लोग गए, और मेरी बुआ जी हमें लेकर गई एक जगह पर जहाँ पर एक बहुत बड़ा कुंड था, और वो पूरा नीचे उतर के बावली की ही तरह हमें पूरा सीढ़ियां उतर के नीचे तक जाना था। चलिए हम वहां पहुंच गए। तो मैं, मेरे मदर, मेरे बुआ जी और मेरी बहन, मेरी छोटी बहन थी, तो हम 2 छोटे बच्चे, और मम्मी और बुआ जी ये वहां पर थे। तो इतने में वहां पर किसी के खांसने की आवाज आई, ऊपर से कोई निकला होगा, उसके खांसने की आवाज आई, एक दो जना। तो मेरी बुआ जी ने जोर से आवाज मारी कि आप आ जाइए। तो मैंने बुआ जी से पूछा कि आप ऐसे कैसे, मतलब किसी को रैंडमली, मुझे दिख भी नहीं रहा वो शख्स, आप आवाज मार रहे हो किसी को, किसी अंदर आ जाओ। तो बुआ जी ने बताया कि नहीं, वो उन्होंने यहाँ आके वो इसलिए खांसे हैं क्योंकि दोपहर का टाइम है, दोपहर के टाइम पानी के पास मर्द नहीं जाते, लेडीज होती हैं। तो मर्द जो है वो पास जाते हैं, लेकिन उस तरफ देखते नहीं है, वो दूर खड़े होकर ताली बजाएंगे या खांसेंगे या आवाज करेंगे। अगर नीचे से कोई आवाज नहीं आई तब वो अंदर आएंगे, या अगर किसी की आवाज आ गई, उन्होंने फिर वो बता देंगे कि हमें पानी चाहिए, तो फिर लेडीज बता देंगे कि आप आगे आ सकते हैं कि नहीं, लेकिन तब तक वो उस तरफ देखेंगे नहीं। तो ये जो एक एटिकेट था, ये जो एक कल्चर डेवलप हो चुका था वाटर बॉडीज के अराउंड, ये शायद भारत में पूरी तरह से खो चुका है। जो रिस्पेक्ट हम देते थे अपने बाकी लोगों को, खासकर लेडीज को उस जमाने में, वो आई थिंक पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और बावलियों को देखकर मुझे यही याद आता है कि कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई प्राइवेसी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी
मैं नॉर्थ से साउथ में जहां जहां घूम के मैंने बाउली पे रिसर्च की, मैंने उड़ीसा में जाके बाउलियां देखी हैं, जी। बॉम्बे के पास एक बाउली एग्जिस्ट करती है, कर्नाटका वहां पर वापिया और ये सब है, गुजरात की वाव मैंने देखी है, सबके साथ बहुत सारी स्टोरीज एसोसिएटेड है। बट अब ऐसा हो गया जैसे हाँ किसी जमाने में हुआ करती थी। हुआ करती थी जी। But what you just told me वो जिस खांसी वाली बात, it's such a wonderful thing to do, है ना? it is. जी बिल्कुल, इट इज। मतलब एक तरह से आप बता रहे कि अभी स्पेस आपके लिए नहीं है, और उसके लिए भी बहुत ही छोटी सी हिंट दी उन्होंने, मतलब बहुत एग्जैक्टली, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बिल्कुल। ये तो मेरे साथ हुआ है तो इसलिए पता, और बाद में मैंने फिर जा जाके इसको वेरीफाई किया, लोगों से जब बातें बातें करता था मैं, हाँ ढूंढता था हाँ इन्फॉर्मेशन, तो और कंफर्म पता चला हाँ ऐसा ही होता है। नोबडी एवर रोट दीज लॉज, दीज वर राइट। अनसेड लॉज जो हम हमेशा से फॉलो करते आए हैं। इंटरेस्टिंग। तो अब हम लोग दिल्ली के बारे में जो आप बताए कि दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट दैट आई हैड नो आइडिया अबाउट। आई हैव हर्ड अबाउट यमुना एंड गंगाज वाटर बीइंग अनफिट, बट ये मुझे नहीं पता था कि सारी बावलियों की ओरिएंटेशन और वो आसपास ही थी रिवर के। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। तो which Baoli are we going to talk about first today? Why don't we start with the oldest Baoli of Delhi? So although Anang Tal जो टैंक है वो ज्यादा पुराना है, बट अगर मैं हाँ टेक्निकल डेफिनेशन की बात करूं बाउली की, तो अल्तमश के टाइम का हमारे पास जिक्र आता है कि अल्तमश के टाइम पे वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह को अपना पीरो मुर्शिद मानते थे। और जब वो वहां जाके अल्तमश ने देखा एक दिन उनको कि वो बहुत बुरी हालत में बैठे हैं, वेरी बड़े ही डिसल्ड स्टेट में हैं, तो उसने पूछा कि भाई आप ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे बैठे हैं आप? तो ख्वाजा ने कहा यहाँ तो पीने को पानी नहीं मिलता, नहाने को कहाँ से मिलेगा? अच्छा, अब वो तो बादशाह था, कुछ भी कर सकता था, उसे बुरा भी लगा, क्योंकि जब ख्वाजा कुतुब दिल्ली आते हैं तो वो सबसे पहले जो अभी किलोकड़ी का इलाका है वहां कयाम करते हैं, और अल्तमश के कहने पर ही वो आके मेहरौली में बसते हैं। तो उसको लगा कि एक तो मैं इनको यहाँ लेके आया हूँ, यहाँ इन्हें पानी तक नसीब नहीं हो रहा है, ये तो मेरे लिए बहुत बुरी बात है। तो उसने कहा कि जो खानका है उसके बिल्कुल बाहर जो ओपन स्पेस पड़ा था, इमीडिएटली यहाँ बावली खोदनी शुरू करो। जब उन्होंने वो बावली खोदी तो काफी गहरी है वो बावली, दिल्ली की सबसे गहरी बावलियों में से एक है। जब वो नीचे तक पहुंचे और पानी आया तो उस पानी के अंदर सल्फर के ट्रेसेस थे, गंधक के ट्रेसेस थे। नाउ गंधक और सल्फर has laxative effect, which means you cannot drink that water. But sulfur is very good for skin. तो नहाना उससे ज्यादा काम का होता है। अब मजे की बात है, ख्वाजा काकी ने कहा भी यही था कि भाई हमारे को पीने को तो पानी है, अभी नहाने की प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए खुदा की करामात की, वो नहाने के लिए ही हो गया वो पानी, अब उसे पी नहीं सकते। अच्छा, तो मतलब हाँ जी 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 जी। तो एक बात बताएं, तो ये जब पानी जब रेनफॉल होता होगा, हाँ जी, तो क्या पानी डाइल्यूट या कुछ ऐसा नहीं होता होगा? ये तो राजाओं की बावली है ना? नहीं, मैंने चेंज कर दिया, ये गंधक की बावली है। लेकिन ये तब की तस्वीर है जब मैंने पहली बार, ये तस्वीर है 12 दिसंबर 2010 की। अच्छा। जब मैंने पहली बार गंधक की बावली देखी थी तब इसमें पानी नहीं था, नीचे बहुत थोड़ा सा बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है। और ये तस्वीर है 2014 की, जब इसमें लोग नहा रहे थे, एक बच्चे की इसमें डेथ हो गई, जिसकी वजह से फिर उन्होंने काफी टाइम तक इसको बंद रखा। और ये तस्वीर एक और मैं निकाल के दिखाता हूँ, ये 2017 की है, 3 साल पहले की। इसमें पानी भरा हुआ और ये बंद है डेथ की वजह से। पानी का लेवल चेंज होता रहता है। हाँ, बारिश का उसमें बहुत बड़ा रोल है प्ले करने का, कि जो पानी का लेवल है उसमें। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जिसे हम कहते हैं कैचमेंट एरिया। देखिए होता ये है कि पानी जमीन के नीचे जब पहुंचेगा तो नीचे से ही वापस बावली में भरेगा, वाटर लेवल जब अप जाएगा। तो अगर आप जमीन के नीचे पानी जाने ही नहीं देंगे, आपने कैचमेंट एरिया साइड में नहीं बनने दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, सारा कंक्रीट का जंगल बना दिया, बारिश पड़ेगी तो उनकी घरों की छतों पे पड़ेगी, सड़क पर भी पड़ेगी, तो सड़क को भी आपने मेटल रोड बना दिया है और सारा पानी वहां से साइड में जो मेन होल बना हुआ है या सीवर है उसमें जा रहा है। घरों का भी सारा पानी निकल के सीवर में जा रहा है, और सीवर के पाइप डाल के हमने कर दिया यमुना की तरफ कि पानी सारा यमुना तक पहुंचा दो, जमीन के नीचे मत जाने दो। तो बावलियों में पानी आएगा कहाँ से? इस बावली में भी पानी कब आया? जब ख्वाजा कुतुब की दरगाह के अंदर एक बावली बनाई गई थी बाद में अंग्रेजों के दौर में, उस बावली को जब क्लीन किया गया, रिवाइव किया गया, तो नीचे से क्योंकि वाटर चैनल्स कनेक्टेड है
तो हाँ। सब में पानी आया, तो इसमें इसमें राजों की बावली में 3 बावलियां कनेक्टेड है, 2 बावलियां और है यहाँ पर जो दब चुकी हैं। औरंगजेब के टाइम की एक बावली है और एक और है, वो काबली वाला बावली, वो खत्म हो चुकी है। बट ये जो 3 बची हुई है, इनमें पानी वापस आ गया, क्योंकि नीचे से तो सब कनेक्टेड है। लेकिन ये ओके। पानी साफ नहीं है, ये वो गंदक वाला पानी शायद नहीं है अब इसमें से बकायदा गटर की स्मेल आती है। बिल्कुल, आई हैव आल्सो बीन हियर, तो मुझे ये मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। एक बात बताएं विक्रम, सॉरी जी टू साउंड वेरी दिस थिंग, बट ये अनइनिशिएटेड क्वेश्चन है इंसान का। आप ये बताएं कि इस एरिया में अभी तक आपने बताया कि इस एरिया में एक तो गंडक की बावली है, ठीक जी, है, राजों की बावली क्रोनोलॉजिकली ये सबसे पुरानी है। सबसे पुरानी है। ओके। सबसे फिर उसके आखिरी बाद जो पूरी दिल्ली की पहली बावली बनी है वो ये है, जो आप तस्वीर में सामने देख पा रहे हैं। जो दिल्ली में हाँ, आखिरी बावली बनी वो इससे करीब 50 कदम दूर है, ख्वाजा काकी की दरगाह के अंदर, जिसे हाफिज और वो दाऊद की अंग्रेजों बावली के कहा जाता दौरान है। बनाई गई थी, अंग्रेज उनके आते थे शासनकाल में। बिल्कुल 1870 1860 का 1830 का है शायद, उसके अंदर जो हमारे पास एक लेट मी पुल दैट इमेज आल्सो। सो उसके अंदर जो गर्डर्स वगैरह उस टाइम पे लगाए गए थे लोहे के, हाँ। 1898, सो दैट्स द पीरियड। तो मुगल बादशाह वाह। अभी मुगल एम्पायर जा चुका था, हाँ। ये तब की अफसोस। ये बावली को बंद रखा जाता है और इस समय ये बस एक कचरे का ढेर बन चुकी है। हम्म। तो इसके ऊपर काफी बार शोर मचाया गया, काम भी किया गया, दरगाह कमेटी ने इसको बहुत बार साफ कराया, लेकिन प्रॉब्लम हाँ। ये है कि 3 साइड पे घर हैं लोगों के, एक साइड पे दरगाह है और घरों की साइड से ओपन है, तो वो लोग इसको अपने कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल करते हैं। और ओ। जब जो मजलिस खाना है दरगाह ख्वाजा काकी का, वहां पर जब कोई लंगर लगता है या कुछ होता है, तो लोग, छोटी सी दीवार बनी हुई है जिसके पीछे ओपन वाला जो टैंक है इसका, तो वो वहीं से ऐसी अपनी सारी पत्तलें और खाने की जूठा जो सामान है वो इसमें फेंकते रहते हैं। तो जिसकी हम्म। वजह से इसकी जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है। कितना भी इसको साफ, हर थोड़े दिन में साफ किया जाता है, फिर हालत खराब हो जाती है। तो कूड़े से भर गई थी, ये साफ कराया गया, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, दरगाह कमेटी इन्वॉल्व हुई, लेकिन कितना आप एक जना इसको साफ करवा लेगा, लोगों को जब तक लोग आगे नहीं बढ़कर इसके लिए कुछ करते। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हेरिटेज तो ऐसे इसके ही। अंदर एक बहुत हाँ, जबरदस्त एक हॉल है। बात बताएं मुझे कि ये इसका आपने बताया इसका जो चैनल्स है वो कनेक्टेड है गंडक के साथ में है, यही बात है? अंडरग्राउंड सारे कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि जो वाटर चैनल्स अंडरग्राउंड होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, तभी तो हम कहते हैं जमीन के नीचे पानी की नहरें बह रही हैं, तो ये नहरें हाँ। आपस में कनेक्टेड ही तो है। तो राइट। अगर मैं यहाँ से बावलियों में पानी बिल्कुल ठीक कर दूंगा और वाटर लेवल आसपास का ठीक कर दूंगा, तो जो साकेत के पास जो बावली है, आरकेपुरम में जो बावली, उसमें पानी आ जाएगा। और पुराना किला, लाल किला, फिरोजशाह कोटला, इनमें ऑलरेडी पानी है। मटिया महल बगल में है, राइट। उसमें पानी है। तो ये सारा ठीक कर दूंगा तो इसके आसपास के एरियो में कुएं वगैरह जो, उनमें अपने आप पानी ऊपर तक भर जाएगा, अगर इनको थोड़ा सा और क्लीन करके बेटर कर दिया जाता है तो। राइट। आप ये ना लेकिन सोचे कि मैं आपको इनफैंटाइल क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, ये नहीं इसलिए नहीं, पूछ रही हूँ क्योंकि आई थिंक ज्यादातर लोगों को ये बड़ा इस बात से बहुत अचंभा होगा, ये बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक बात है। देखिए एक ये है कि जो भी बावलिया कुएं की हम बात कर रहे हैं उसकी डीसिल्टिंग भी बहुत जरूरी है। तो क्योंकि होता हम्म। क्या है, पानी जो है वो जो पत्थर पे पत्थर रखा जाता है, बीच में जो पोर्स होते हैं उसके अंदर गैप होता है, उससे पानी वापस भर जाता है अंदर। अगर उनमें काई और मिट्टी बहुत ज्यादा जमा हो गई है तब नहीं भरेगी वो बावली। तो हम्म। ये नीचे स्लज बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई है अगर, तो नीचे से भी पानी नहीं आएगा। तो इसीलिए कुएं और बावलियों में उतर के उसको साफ किया जाता है, उनको सुखा के साफ किया जाता है। बड़े बड़े टैंक्स जो हैं, चाहे वो हम्म। हम देखते हैं अक्सर, जैसे गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है, हर कुछ जी। सालों में पूरा पानी सुखा के नीचे से पूरा साफ किया जाता है उसको। राइट। बाकी जगहों राइट। पर भी ये किया जाता है, सारे सरोवरों में ये किया जाता है। हम्म। कुछ साल पहले ख्वाजा निजामुद्दीन की दरगाह के साथ जो बावली जुड़ी हुई है, बिल्कुल। उनका सुखा के उसको साफ किया गया था। अभी वहां पर फिर से प्रॉब्लम डेवलप हो गई है, क्योंकि साइड में कंस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा हो गई है कि बिल्कुल। वो दीवारें हैं वो मलबा। उसका लोड नहीं ले पा रही हैं, कभी भी अंदर हम्म। को केव इन कर सकती है, कोलैप्स कर सकती है। जी। उस पर लोगों ने काफी शोर मचाने की कोशिश की है, लेकिन बताए इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं। आगा खां फाउंडेशन काम करने को तैयार है, AKTC, लेकिन दरगाह कमेटी वो राजी है साथ में। बट यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं, ASI भी इन्वॉल्व है, और सबसे जरूरी जो आसपास बस्ती के लोग हैं वो इन्वॉल्व है। तो उनको हम्म। पहले ओनरशिप लेनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है किसी के घर का स्ट्रक्चर उसको डिस्टर्ब कर रहा हो। और मैं सिर्फ बिल्कुल। निजामुद्दीन की बात नहीं कर रहा, पूरी दिल्ली का यही हाल है। अग्रसेन की बावली की अगर हम बात कर लें, अगर उसमें पानी वापस आपको चाहिए तो स्टेट्समैन हाउस तक आपको पूरा
जितना एरिया है वो सारा के सारे के अंदर तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। पानी को जो है वहां पर कैसे लेके आना है, जमीन के नीचे पहुंचाना है, फिर अगर से इनकी बाउली में डिसिल्टिंग करनी पड़ेगी, बहुत काम है और पॉलिटिकल विल बहुत स्ट्रांग चाहिए उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर शायद जितनी इन्वेस्टमेंट होगी तो लोग पूछेंगे उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। तो हाँ, मतलब आज के जमाने में सब कुछ देखना पड़ता है ये सब। और शुगुफ्ता जी, आपने अच्छा कि रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की बात कर दी, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। रिटर्न हम्म और इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला, उसका रीजन ये है कि हमारे पास हम कितना भी साफ कर लें, जब तक हम उसके अंदर से पानी को निकाल के साइकिल नहीं करते, ऐसे यूज करना शुरू नहीं करते हैं, उसका पानी वो बड़ा बड़ा सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन अब पानी निकालोगे कैसे? पानी निकालना काम है दिल्ली जल बोर्ड का, बावली है हम्म आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास। जहां से पाइप डलने हैं वो यहाँ डीडीए का लैंड है या एनडीएमसी का या एमसीडी का है। तो चलो आपने सारी एजेंसी से बात कर भी ली, हमारा हम्म। एक्ट ये कहता है कि आप एक मॉन्यूमेंट को डीफेस नहीं कर सकते, ना आप राइट। उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। तो पाइप को दीवार तोड़ के अंदर तो डालोगे नहीं, आपको ऊपर से डालना पड़ेगा पाइप। ऊपर से पाइप डालते हो तो वो अगलीनेस है उसकी, आप उसको डिफेस कर रहे हो, तो हमारा लॉ ही अलाउ नहीं कर रहा। तो इतने हम्म ज्यादा पेंच है इसके अंदर कि वो कभी हो ही नहीं पाता। दिल्ली जल बोर्ड कहता है इससे अच्छा मैं साइड में एक बोरवेल करके यहीं से पंपिंग स्टार्ट कर देता हूँ, मेरा काम आसान है, मुझे इन लीगल चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा। एएसआई हम्म। सभी बच जाते हैं। तो बाउलीज को तो मैं ये कहूंगा कि बजाय इनको रिवाइव करने के, वाटर लेवल को आप ठीक करिए, लेकिन बाउलीज को एडाप्टिव रीयूज करिए। सीढ़ियां हैं, बिल्कुल आगे प्लेटफॉर्म है, थिएटर बना दीजिए ना, बिल्कुल, व्हाई नॉट, एम्फी थिएटर के जैसे बन सकता है म्यूजियम ये बनाइए, एग्जीबिशन गैलरी बनाइए। परफॉर्मेंसेस के लिए। जरूरी है आपको पानी ही उसके अंदर चाहिए, जब आपको पता आप उस पानी को सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब और पनघट इतना पे इन्वेस्टमेंट है उसमें। हाँ, मटका उठा के पनघट पे कोई नहीं आएगा पानी भरने अब। नो नो, दैट्स ट्रू, दैट इज ट्रू। आई थिंक ये अडेप्ट तो करना ही पड़ेगा उसको। बिल्कुल। ओके, लेट्स मूव ऑन, आई हैव टेकन टू मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गो इनटू अदर बाउलीज। लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। नहीं, इनफैक्ट वी हैव अ क्वेश्चन आल्सो। अशोक जी पूछ रहे हैं कि जो सारी बाउलियां हैं उनमें नेचुरल वाटर होता है या जिसमें रेन वाटर, कुछ ऐसी भी है जिनमें रेन वाटर भी स्टोर किया जाता है। वेल, जो तुगलकाबाद के अंदर दर्जन भर बाउलियों का जिक्र आता है, जिसमें से दो अभी बची हुई हैं, और हमारी कब से डिबेट चल रही है कि ये बाउलियां नहीं है, टैंक होने चाहिए वाटर हम्म स्टोर करने के लिए। क्योंकि अगर तुगलकाबाद देखे पहाड़ी के ऊपर है, वो इतनी गहरी नहीं है कि वाटर टेबल तक पहुंच सके। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नो कि इसके बाहर एक लेक हुआ करती थी, तो हो सकता है उस जमाने में पानी का लेवल हो कि इसके अंदर पानी आ जाता हो। सो वी डोंट हम्म नो कि वो वाकई ही लेक थी या सॉरी बाउली थी या टैंक था जिसमें सिर्फ रेन वाटर स्टोर किया जाता है। बट वन थिंग वी डेफिनेटली नो कि दिल्ली में बहुत सारे रेन वाटर स्टोर करने के लिए भी टैंक्स बनाए गए थे, कुछ एक बचे राइट। भी हुए। लेकिन क्योंकि रेन इतनी नहीं होती थी या पानी के और सोर्सेज आ गए, तो ज्यादातर को भर के उसके ऊपर बिल्डिंग्स बना दी गई। एक जैसे एक लेक हुआ करती थी हमारे पास, जहां पे सतपुला बना हुआ है आज, वहां पे सिलेक्ट सिटी वॉक के बगल में जो राइट। साकेत का सिटी कोर्ट है, वो ओरिजिनली एक लेक हुआ करती थी, जो कि वाटर रेजर्वायर था सतपुला के लिए तुगलक के जमाने में। अभी राइट। वहां कोर्ट बन गया है, और वो बारिश का ही पानी इकट्ठा होता था, वो जमीन के नीचे से नहीं आता था। तो उस तरह हम्म। की चीजें थी हमारे पास। हम्म। सो हाँ, बाउली की बात कर रहे थे, चलिए आपको रिज बाउली के बारे में बताता हूँ। रिज बाउली बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे बहुत सारी बाउलियों पे काम हुआ, जिनमें से कोटला फिरोज शाह, लाल किला, रिज बाउली, ये बाउलियां जो है ये सबसे खास हैं। इनके अंदर जो एलिमेंट कुछ एक ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद है। जब मैं पहली बार रिज बाउली गया था, आई इट दैट वाज इन 2010 और 11। सो उस टाइम पे ये बाउली कुछ ऐसी दिखती थी। ये 2011 की तस्वीर है, जब मैंने हाँ। रिज बाउली को देखा था, तो ये कुछ इस तरह से दिखती थी, काफी बुरी हालत में थी। विक्रम, आप कि जो लोग दिल्ली में नहीं रहते उनको बताइए कि रिज आप किसको रेफर कर रहे हैं और ये रिज किधर है दिल्ली में सिचुएटेड। दिल्ली रिज है, दिल्ली रिज दो पार्ट में बटा हुआ है। एक नॉर्दर्न रिज है, एक सदर्न रिज है। ये छोटा सा पहाड़ी इलाका है जो हिमालय से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। जो नॉर्दर्न रिज है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से शुरू होता है और हिंदूराव हॉस्पिटल और पुलबंगश मेट्रो स्टेशन इसके पास तक आ जाता है। हालांकि यही रिज आगे कंटिन्यू भी हो रहा है, लेकिन अब बीच में पूरा इलाका बस गया है, तो जो गार्डन का इलाका जहां आप घूम सकते हैं, तो उसको हम नॉर्थ और साउथ में बांटते हैं। जो सदर्न रिज है वो राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर धौला कुआं तक आ जाता है, जहां पर अभी भी जंगल बचा हुआ है।
जी। और ये पूरा का पूरा इलाका जो है, इसमें फिरोज शाह तुगलक ने बहुत कंस्ट्रक्शन की। जैसे जो सदर्न रिज जिसको आज की डेट में हम बोलते हैं, वहां पर बू अली बख्तियारी या भूली भटियारी का महल है करोल बाग के पास, और मालचा महल है, ये उसने शिकारगाहें बनाई। एक उसकी हम्म। शिकारगाह महल जो है वो भी तीन मूर्ति हाउस जो पंडित जवाहरलाल जी। नेहरू की रेजिडेंस के आगे चले, उसके हम्म। अंदर उसके कंपाउंड में है। जो हम्म। नॉर्दर्न साइड पे जो रिज पड़ता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां पर उसने अपना एक कुश्क जहानुमा एक पैलेस बिल्कुल। बनवाया था। तो कुश्क बिल्कुल। फिरोज और कुश्क जहानुमा ये दो पैलेस हुआ करते थे। कुश्क फिरोज को हम फिरोज शाह कोटला बोल देते हैं आज की डेट में। कुश्क जहानुमा खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी एक बिल्डिंग अभी बची हुई है, विच इज दिस पीर गायब इसे बोला जाता है। और जी। आगे चल के इसके बिल्कुल बगल में अंग्रेजों ने अपनी एक बिल्डिंग बना ली थी। विलियम फ्रेजर का घर रहा है और एक दो अंग्रेज अफसर रहे हैं। फिर एक मराठा हुए हैं हिंदू राव, उन्होंने ये घर बिल्कुल। खरीद लिया, तो ये हिंदू राव का घर बन गया। आई थिंक आई हैव अ फोटोग्राफ ऑफ दैट एज वेल। हाँ, ये उनका घर है। और इस घर के बिल्कुल राइट। पीछे जो बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं वो हॉस्पिटल है। तो ये बिल्डिंग ओरिजिनली हॉस्पिटल बन गई थी, अब उसके पीछे ये बड़ी बिल्डिंग है जो नई बिल्डिंग बन चुकी है हॉस्पिटल की। तो दिस इज बड़ा हिंदू राव हॉस्पिटल, आज हम्म। दिल्ली नॉर्थ दिल्ली का हिंदू राव हॉस्पिटल, फुलबंग मेट्रो स्टेशन से जो एक्सेसिबल है। इसके बड़ी बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे सटी हुई ये उसी बिल्डिंग के कॉर्नर के पीछे का वो है, ये बावली है। और इस बावली को आज की डेट में आप ऐसा देख सकते हो, एएसआई ने अब इसे रिस्टोर कर दिया है। अब ये बहुत बढ़िया से मेंटेन्ड बावली है। और ये जो पानी आप देख रहे हो इसके अंदर, ये बहुत ही साफ पानी है, ये गंदा नहीं है। क्योंकि जो आप उसके ऊपर हरी लेयर देख रहे हो, वो जी। प्लांट्स हैं, फिशेस सर्वाइव ऑन दीज प्लांट्स, सो दिस राइट। ग्रीनरी इज इंपॉर्टेंट। एंड गॉट। अदरवाइज इफ यू गो क्लोजर, तो आप नीचे पड़े हुए पत्थर तक बहुत क्लियरली देख सकते हो, तो पानी गंदा नहीं है ये। अच्छा। दूसरी चीज, अच्छा। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे उसने एक टनल बनवाई थी यहाँ से कुश्क फिरोज यानी कि फिरोज शाह कोटला तक। हाँ। इसके हाँ। बारे में बहुत सारे हिस्टोरियंस ने लिखा। अकबर के जो कोर्ट हिस्टोरियन हैं, उन्होंने अपनी किताब आईने अकबरी में इसको मेंशन किया, जिसमें वो ये लिखते हैं कि बाकायदा तुगलक जो है वो अपने घोड़े पर बैठ के पूरे कारवां के साथ इसमें से निकला करता था। गुजर सकते थे। अंग्रेजों के टाइम पर उन्होंने उस टनल को ढूंढने की कोशिश की, उन्हें टनल तो मिल गई, लेकिन वो इतनी छोटी थी, किसी किसी जगह पे सिर्फ 4 फीट, तो अगर मैं खड़ा हम्म। होऊंगा तो मेरे यहाँ तक आएगी, जी। यानी कि एक आदमी सीधा निकल भी नहीं सकता। तो वो घोड़े वाली बात सही नहीं है, पर टनल है। तो फिर हम्म। क्या किया, जब वो काफी अंदर तक गए, मैंने अपनी किताब में उसके बारे में काफी डिटेल दी है कि कितने मीटर तक उन्होंने खोदा, कहाँ कहाँ उन्हें वेंटिलेशन शाफ्ट मिली, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज मिली। तो अंदर तक जब वो जा रहे थे, उन्होंने देखा ये इतनी ज्यादा खराब हालत में है, ये कभी भी कोलैप्स कर सकती है। तो हम्म। उन्होंने उसको फिर और ज्यादा आगे एक्सकेवेट नहीं किया, बल्कि उसमें मिट्टी भरनी शुरू कर दी और पूरी की पूरी टनल सील कर दी। तो अभी ओह। वो एग्जिस्ट नहीं करती पूरी टनल। लाल किले से निकलने वाली टनल्स, फिरोज शाह कोटला से निकलने वाली टनल्स ढूंढ ढूंढ के सारी बंद कर दी गई हैं। ये बट ये एग्जिस्ट करती थी क्योंकि अंग्रेजों ने इनको डॉक्यूमेंट किया अपने रिकॉर्ड्स में कि वो कैसे राइट। बंद कर रहे हैं, तो कितना मिला, मेजरमेंट्स लेके फिर उनको बंद किया। वाह। इंटरेस्टिंग। तो पीर गायब से हम कहाँ जा रहे हैं अब? पीर गायब हमने कर लिया है, तो क्यों ना मैं आपको लाल किले ले चलूं। ठीक है। लाल किले की बावली भी बहुत खास है। तो कुछ रिकॉर्ड तो ये सजेस्ट करते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम में ये बना दी गई थी, क्योंकि फिरोजाबाद जो हाँ। उसका शहर था वो यहाँ तक आता ही था। लेकिन जो अभी हम इसका डिजाइन या आर्किटेक्चर देख रहे हैं, वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम का नहीं है, ये मेसनरी बाद की है। तो प्रोबेबिलिटी है कि लोधी के टाइम में इसको रिपेयर किया गया हो या मुगल दौर में इसको रिपेयर किया गया हो। बहुत ही मजेदार स्ट्रक्चर है, एल शेप स्ट्रक्चर है, और इसमें साइड में कमरे बने हुए हैं। ये जो आप अभी कमरे देख रहे हैं, ये बंद किए गए हैं ईंटों से, ये अंग्रेजों के टाइम पर हुए थे। और राइट। इसके ऊपर यहाँ पर जो ओपन स्पेस है, यहाँ पर लोहे के गर्डर्स रख दिए थे, जो अभी भी यहीं साइड में ही पड़े हुए हैं। गर्डर्स रख के इस पे स्लैब्स डाल के बाकायदा फर्श डाल दिया था। तो बावली में कुछ सीढ़ियां नीचे उतरे, 10 फीट के करीब उतरे, और उसके आगे कुछ नहीं है, फर्श आ गया। और 1945 के अंदर जब इंडियन नेशनल आर्मी के जनरल्स को पकड़ा गया, तो 3 जनरल्स को इसमें रखा गया था, जिनको हम रेड फोर्ट ट्रायल के नाम से जानते हैं। और तब एक नारा भी दिया गया था कि लाल किले से उठी आवाज, सहगल ढिल्लो शाहनवाज। तो प्रेम सहगल, शाहनवाज हुसैन और गुरबख्श सिंह ढिल्लो, इन तीनों को यहाँ रखा गया था। यही बावली के ही ऐसे आर्चिज हैं, उनको बंद करके अंदर एक छोटा सा टॉयलेट बनाया गया, एक कॉर्नर में उनके लिए अलग से एक पेंट्री बना दी गई। तो उनको इसके अंदर कैद करके रखा गया था। अच्छा। तो ये वो
जब इंडियन आर्मी ने ये किला छोड़ा तो उस समय फिर एएसआई ने 80s के बाद इसको साफ करना शुरू किया, क्योंकि कूड़ा डाल डाल के ऊपर तक भर गई थी। तो ये क्योंकि जेल तो रही नहीं, फिर ये इसको बंद करके इसमें कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया लोगों ने, ये भरी हुई थी ऊपर तक। तो जब एएसआई वाले आए और उन्होंने इसकी सफाई शुरू की, तो करते करते पूरी की पूरी बावली जो है ये अंदर तक उन्होंने क्लियर की, और इसके साइड में जो इसका शाफ्ट है, जो कुआं है, वो निकाला। कुएं के ऊपर ही अभी भी एक अंग्रेजों के टाइम का एक शेड डला हुआ है, उसके नीचे पानी निकल आया, पाइप्स वगैरह डाल के इसमें पानी जो है वो फेच किया जाता है। राइट। और एक बहुत ही खूबसूरत एल शेप का स्ट्रक्चर है ये। तो इस तरीके से ये होता है। लाल किले के अंदर अफसोस कि लोग लाल किला इतना घूमने जाते हैं, लेकिन कोई इस तरफ नहीं जाता, कोई इसे देखने नहीं आता। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर एक और मजेदार चीज है। विक्रम, आई एम गोइंग टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों को अब हम तो ऐसे प्रिज्यूम कर रहे हैं कि सबको पता होगा ये, लेकिन आप थोड़ा एक अनइनिशिएटेड लोगों को बताइए कि जब आप लाल किले में घुसते हैं, ये बावली किस तरफ है, उसका ओरिएंटेशन दीजिए प्लीज। सर, लाल किले में एंटर करते ही एक्चुअली सही बताऊं तो लोगों को नहीं पता, लोग इसके सामने भी खड़े हो जाएंगे, उन्हें पता नहीं चलता ये बावली एग्जिस्ट करती है। हाँ, लाल किले में एंटर करते ही जब आप छत्ता बाजार क्रॉस करते हैं, तो जो ओपन स्पेस आ जाती है नौबत खाने का, जो वो गेट है उससे जस्ट पहले, उसमें अगर आप लेफ्ट साइड को टर्न करें तो लेफ्ट साइड को सलीमगढ़ के लिए रास्ता जाता है, बोर्ड लगा हुआ है, म्यूजियम सारे उसी तरफ है, सलीमगढ़ उसी तरफ है। उस रोड पे सबसे आखिर में ये बावली है, लेकिन बावली का जमीन के ऊपर कुछ खास स्ट्रक्चर नजर नहीं आता। तो जब तक आप वहां जाकर खड़े नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर ये भी चीज एग्जिस्ट करती है। और इसीलिए अंग्रेजों ने इसको यूज किया, ताकि लोगों को दूर से पता ही ना चले और सेफली वो इनको छुपा के अंदर रख सके। बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग चीज ये कि इंडियन आर्मी के टाइम पे इसके जो कुआं है, कुएं के अंदर आर्चेस बनी हुई है। अच्छा। यहाँ पर एक मंदिर बना दिया गया, तो दो आर्च, एक आर्च में मूर्ति रखी गई है और एक आर्च में हमारे पास एक अननोन ग्रेव है, ये दोनों साथ साथ हैं। तो एक मंदिर और एक दरगाह बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं। एक ही कुएं की जो दीवार है, दीवार में जो आर्चेस बनी हुई है, दो आर्चेस में एक मंदिर है, एक में कुआं है। जब मैंने तस्वीर ली थी तो उस समय इसके आगे एक पेड़ हुआ करता था, अभी आई थिंक उन्होंने पेड़ के आसपास कुछ और कंस्ट्रक्शन थी वो हटा दी है। तो जैसे ये लॉकडाउन खुलता है थोड़ा, अभी 15 अगस्त तक तो वैसे ही लाल किला बंद है, उसका जब खुलता है तो मैं जाके फोटो खींचने वाला हूँ, क्योंकि अब वो फ्रेम बन गया है कि मैं दोनों को एक साथ फ्रेम में ले सकता हूँ। पेड़ आएगा बीच में, एक बहुत बड़ा पेड़ है इसके आगे, जिसकी वजह से दो अलग अलग तस्वीरें हैं। अदरवाइज पेड़ के ये तो एम्ब्लेमेटिक है हमारी गंगा जमनी तहजीब का, और अभी भी ये उसको वर्शिप किया जा रहा है या मेंटेन किया जा रहा है। सीआईएसएफ के गार्ड्स हैं जो इसको मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल। दिस photograph however is of 2013. Okay. So ये आप देख सकते हैं। So for those of you who are watching this, please go to the Red Fort and in Delhi and make sure that you look at this Baoli. It's very interesting. I myself got to see it very recently. मतलब 5-6 साल पहले से मैंने उसके पहले मैंने देखी ही नहीं थी। Right. Sohini ji says very exciting. कलकत्ता से लोग बोल रहे हैं कि अब दिल्ली आएंगे। हमारे पास गुजरात से भी एक मैसेज है। Right. So, Karina saying good idea on adopting the stepwell, using them for exhibition, tourist place, and theatre, etc. However, in some innovative ways, the water should be used in some innovative ways to water the park nearby. So, Absolutely. Karina, पानी जो है वो जैसे 4 बावलियां हैं जिनमें से पानी निकाल के एक्चुअल में इस्तेमाल किया जा रहा है। लाल किले की बावली के अंदर ही अगर आप देखें, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ अभी। तस्वीर कहाँ गई? ये देखें। ये तस्वीर मैंने खींची थी जब पहली बार बुलाया गया था मुझे लाल किले की बावली को देखने के लिए। 2015-2016 की बात है, और सोहेल हाशमी साहब को और नारायणी गुप्ता मैम को बुलाया गया था जब एएसआई ने इसे पूरी तरह से साफ करके रिस्टोर कर दिया था। तो हाशमी साहब का फोन आया कि भैया पहुंच जाओ, बावली देखने चलेंगे। तो हाशमी साहब, मैं, नारायणी गुप्ता मैम और के मोहम्मद साहब उस समय इंचार्ज थे दिल्ली के, हम चारों जाने यहाँ पहुंचते हैं। और उस समय जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे यहाँ देखने को मिलती है वो ये कि इस बावली के अंदर साइड में जमीन के अंदर पानी का लेवल ऊंचा है, बावली में पानी का लेवल कम है, जिसकी वजह से दीवार के अंदर जहां कहीं पे भी पोर्स उन्होंने क्लीन करके ओपन किए हैं, पानी वहां से बकायदा स्पाउट की तरह गिर रहा है, जैसे झरना गिर रहा हो अंदर, और पानी की आवाज आ रही है गिरने की अंदर। तो मैंने दीवार से
पानी के झरने इसके अंदर गिरते हुए देखे उस समय। अब वो चीज खत्म हो चुकी है, अब तो बीच में तो पूरी सूख गई थी जब मेट्रो बन रही थी। उन्होंने राइट। टनल, जो वाटर अंडरग्राउंड वाटर चैनल है उसको खराब कर दिया था, फिर वो इमीडिएटली 2-4 महीने में उसको ठीक भी कर दिया था, रिपेयर कर दिया गया था। सो दिस इज रेड फोर्ट बावली। Wow, this is some amazing stuff. You know, I'm going to second Sohini ji. This is exciting stuff. जी। Okay, let's move on then. वेल इफ वी हैव टाइम तो मैं एक दो बावलियों के बारे में और बात कर सकता हूँ। Of course we have time. We have all the time. चलिए, ग्रेट। एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट काफी दिनों से चल रही है सोशल मीडिया पे, वो है इस बावली के बारे में। Let's see which one. दिल्ली की सबसे मशहूर बावली, और इसके नाम पे और इसके आर्किटेक्चर पे डिबेट चल रही है। किसने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई, बहुत बहस हो रही है उसके ऊपर। तो ऐसा है, अग्रसेन की जो बावली है, ये नाम पहली बार अग्रसेन कैसे पड़ा और ये यू से क्यों है, ए से क्यों नहीं है, पहले तो यही डिबेट शुरू हो जाती है। जितने भी अंग्रेजी रिकॉर्ड्स हैं और जितने भी अंग्रेजों से पहले उर्दू के रिकॉर्ड्स हैं, वो अलिफ के ऊपर, अलिफ के साथ जबर पेश आप समझते हैं कई बार नहीं लगाया जाता। तो क्या है, उर्दू लिखते वक्त हम लोगों को जरूरी नहीं है कि ई या ऊ की मात्रा हम लिखें, बल्कि बहुत सारे लोग तो पुराने ख्यालात वाले ये भी कहते हैं कि अब तुम हमें ई और ऊ की मात्रा बता रहे हो, हम इतने अनपढ़ हैं। तो ई ऊ की मात्राओं के बिना ही वो पूरा जो है वो लफ्ज जो है वो लिख जाते थे, और उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो अगर अलिफ और उसके साथ लिखना शुरू किया और साथ में ऊ की मात्रा नहीं है, तो आप उसको चाहे अग्रसेन पढ़े, उग्रसेन पढ़े, इग्रसेन पढ़े, आपकी मर्जी है। हाँ। ये जो लोग लोकल नॉलेज रखते हैं उन्हें उनकी जबान में पता है। दिल्ली में चलती थी खड़ी बोली। जो खड़ी बोली है, बहुत सारे लोग इसे खारी बोली बोलते हैं, पता नहीं क्यों, बट मेरे हिसाब से खड़ी बोली बोलना चाहिए इसे। हरियाणवी एंड हैज इन्फ्लुएंस ऑफ पंजाबी। पंजाबी में वी डोंट से अग्रसेन, वी से उग्रसेन। राइट। उग्र भी नहीं कहा जाता, उग्र कहा जाता है, क्योंकि आगे रे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो गुरमुखी में नहीं आता। तो यू, जी, आर 3 सेपरेट अल्फाबेट्स जिनको अलग से प्रोनाउंस किया जाता है। तो उग्रसेन। और इनफैक्ट गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी लाइन आती है कि तो चारों युगों का वर्णन आता है। तो सतयुग जो है वो 52 अवतार होते हैं। सतयुग तैमाने छलियो बल 52 पायो, त्रेता तैमाने राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्रसेन को राज अभय पक्ताजन दियो। तो वहां पर भी उग्रसेन का नाम का जिक्र आता है, तो ऊ से आता है। तो जब मैं पढ़ रहा था वाक़यात दारुल हुकूमत दिल्ली बशीरुद्दीन अहमद, इस किताब में उन्होंने अग्रसेन, उग्रसेन पता नहीं कितनी स्पेलिंग यूज किए हैं अलग अलग तरीके से। और अगर आप ये किताब देखें, मैप्स ऑफ दिल्ली, तो मैप्स ऑफ दिल्ली के अंदर जितने मैप्स हैं जिन जो अंग्रेजों के टाइम पे पहले बने, 1700-1800 के दौर में जो बने, सब में जो स्पेलिंग है वो अलग अलग आते हैं। उजरसेन, उगरसेन, अलग अलग स्पेलिंग्स जो है वो आ जाते हैं। अब मजे की बात ये है कि इन सब स्पेलिंग्स के साथ फाइनल कौन से रखे जाए, तो मौलवी जफर हसन की जो किताब बनी जिसमें दिल्ली के सारे मॉन्यूमेंट्स की उन्होंने लिस्टिंग बनाई 1908 में, एएसआई ने क्या किया, सारे स्पेलिंग्स वहां से उठाए, लेकिन ये स्पेलिंग वहां से नहीं उठाए गए। वहां पर स्पेलिंग थोड़े से और अलग है। वहां पे UJJAR है, उज्जरसेन है। और इस पर इसीलिए इतना कंफ्यूजन है। तो अभी ये हो गया कि भैया सरकारी रिकॉर्ड में अब जो स्पेलिंग आ गए वही चल रहे हैं। बाहर जो NDMC ने बोर्ड लगाया है वो ए से लगा दिया है, जो ASI का बोर्ड है क्योंकि जो उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग आ रहे हैं उनको वही लगाना पड़ेगा, अंदर यू से लगा हुआ है। एक्चुअल स्पेलिंग क्या है, अगेन अ मैटर ऑफ डिबेट। राइट। सो इसकी हिस्टोरिसिटी क्या है, बड़ा डिबेटेबल है ना ये। तो कहा जाता है कि जी महाराजा अग्रसेन ने बनाया था। महाराजा अग्रसेन वाला जो पॉइंट है वो तो कहीं पे भी हम प्रूव नहीं कर सकते। हाँ, अग्रवाल कम्युनिटी के किसी सेठ ने बनवाया था, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और फिर इसमें एक ये कि तुगलक दौर में बनी थी, ये पहला हमारे पास आता है, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि नहीं, हो सकता है ये लोधी या मुगल काल में बनी हो। कुछ ये भी कहते हैं कि शायद बन पहले गई हो लेकिन लोधी या मुगल काल में फिर से रिपेयर हुई हो, क्योंकि ये इलाका जयसिंहपुरा के साथ जुड़ा हुआ था, नरहौला का गांव था ये। तो जयसिंहपुरा इज द एस्टेट ऑफ राजा जयसिंह ऑफ जयपुर।
जी। अब जब उनका इलाका आ जाता है तो वो इसको जरूर रिपेयर तो वो करवाएंगे अगर लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक और मजेदार तस्वीर दिखाता हूँ। दिस इज फोटोग्राफ फ्रॉम 1914, 1914 की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए। तो जब मेंटेनेंस अच्छा। नहीं होती तो बावली की हालत खराब हो जाती है। ये राइट। 1914 की तस्वीर है, ये 1923 की तस्वीर है, ये 1926 की तस्वीर है। सो हालत खराब हो चुकी थी बावली की। जाहिर है उनके दौर में भी, अगर तुगलक दौर में बनी भी है तो लोधी काल में आते आते ये ऐसी हालत हो गई होगी, फिर उन्होंने रिपेयर करवाई होगी, तो इसमें राइट। तब्दीलियां करवाई गई होंगी वक्त के हिसाब से, कोई बड़ी बात नहीं है। हाउएवर द अदर डिबेट इज कि ये जो मॉस्क है इसके बगल में, जो कि जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, दैट इज 1923। तो ये मॉस्क जो है ये आज भी ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, ये पेड़ भी आज की डेट में एग्जिस्ट करता है। कि अगर ये अग्रवाल समाज में किसी ने बनाई थी तो मस्जिद क्यों होती यहाँ पर। हमारे पास राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने अपनी किताब में भी दिए हैं, जहां पर हिंदुओं ने मस्जिदें बनवाई, मुसलमानों ने मंदिर बनवाए, सिखों ने मंदिर और गुरुद्वारे बनाए। जो छठे गुरु हैं, आप हरगोबिंदपुरा जाइए पंजाब में, गुरु की मस्जिद जो मॉस्क है वो राइट। गुरु राइट। हरगोबिंद साहब जी। जी ने बनवाई हुई है। आज भी नमाज हो रही है, निहंग वहां पर बाकायदा पहरा देते हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं अंदर। बिल्कुल। तो ये चीज, जब तक अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं इंप्लीमेंट की थी तब तक तो हम एक ही थे। ये तो उसके बाद ही लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है ना। तो जी। जहां जी। पर पॉपुलेशन जो है, अगर ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की है तो मस्जिद बनवा देते थे, ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुओं की है तो मंदिर बनवा देते थे। तो बगल में थोड़ी आगे जब बाद में जयसिंह का टाइम आता है तो हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है बगल में। वो राइट। मुगल दौर के लेट मुगल पीरियड का आ जाता है जब जयसिंह का वो टाइम चल रहा है। हालांकि उसके ऊपर हम्म। भी डिबेट है कि उस टाइम पे बना नहीं बना, बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। सो राइट। इसकी दीवारों के अंदर, ज्यादातर लोग शायद ये नहीं जानते हो क्योंकि अब इसको अच्छे से बंद कर दिया गया सिक्योरिटी रीजन से ऑब्वियसली। दीवारों के अंदर हम्म। से सीढ़ियां हैं ऊपर नीचे चढ़ने के लिए। तो अब आधा ओह। रास्ता नीचे जाइए, साइड में, लेट मी लुक फॉर दैट फोटोग्राफ। हाँ, अभी ये सब बंद हो गए। मेरे पास पुरानी 2010 की तस्वीर है, एक जो अभी अभी लोड हो रही है। हम्म। मुझे अपने लैपटॉप में थोड़ी जगह खाली करनी पड़ेगी, थोड़ा फास्ट हो जाइए। तो ये अभी बंद कर दिए गए हैं, बट इस तरह से दीवार के अंदर रास्ते घुसते हैं तो कहीं से भी फिर आप ऊपर चढ़ सकते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल तक अंदर वो बने हुए हैं। तो बहुत ही बढ़िया से ये बावली मैनेज करके और बहुत ही मजबूती के साथ इसको बनाया गया था। मेरे लिए जो इसमें सबसे अमेजिंग फोटोग्राफ है, जो मेरे लिए सबसे मुश्किल तस्वीर थी, वो मैंने 2 साल पहले 2018 में खींची थी, किताब कंप्लीट करने से जस्ट पहले। वो ये वाली तस्वीर है। इसमें चमगादड़ बैट हाँ। बहुत ज्यादा है और मैं राइट। सुबह पहुंच गया था जब बैट्स के सोने का टाइम था और वो अपने आप को हल्का कर रहे थे। सो बैट हाँ। ड्रॉपिंग्स वाज लाइक अ रेन। तो मैं कैमरा लेके नीचे किया, क्लिक करके बाहर निकला फटाफट, जितने मेरे पे छींटे पड़ने थे पड़ गए। ओ थैंकफुली गॉश। बाइक पर था, गाड़ी में नहीं था, नहीं तो गाड़ी के अंदर स्मेल भर जाती क्योंकि स्टिंग बहुत ज्यादा होती है इसकी। ओ गॉश। घर आके जो मैं नहाया हूँ और जो मैंने कैमरे को रगड़ के साफ किया है, मैं जानता हूँ ये मेरी किताब की आखिरी तस्वीर थी जो मैंने खींची थी। और अच्छा। मतलब मैं ये करता कि छोड़ देता मैं ये फोटो, क्यों अपने आप को इतना गंदा किया। स्मेल कितने दिनों तक नहीं गई अपनी बॉडी में से क्योंकि इतनी ज्यादा वो। Oh, so anyone who's listening to this, don't try this, okay? अब Otherwise, इसमें, you'll have to. हाँ, ये दिस इज अ प्रोसेस्ड फोटोग्राफ। अगर मैं रॉ फोटोग्राफ कहीं ढूंढूंगा तो आपको बीच में डॉट्स जो हैं बैट ड्रॉपिंग्स के नजर भी आ जाएंगे क्योंकि वो कैमरे पे लेंस पे पड़ रहे थे। वो How मैंने many थोड़ा सा split एडिटिंग करके, seconds were you there for? वेरी वेल आई टुक माय पोजीशन, आई 2 स्टेप अंदर लिए, क्लिक एंड बाहर। बट उतनी देर में आपका काम ड्रॉपिंग इतना हो हो रही गया? थी ना उस टाइम पे। सो Okay. ओके, वी हैव गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। मुनज़्ज़र जी ने लिखा है कि हाउ वी कैन कंजर्व दीज मॉडर्न यूज एरिया, वन इज मजार अनदर इज टेंपल, there are whitewash and green paint over there, however we have removed boundary and grill all around to showcase the Bauli to the visitor. So मुनज़्ज़र अली जी तो ASI के साथ जुड़े हुए हैं। अभी जी। बावली के आसपास इंडियन आर्मी ने जो बिल्डिंग्स बना रखी थी वो भी हटा दी गई है। लाल किले की बावली की भी बात हो रही है बाय द वे, लाल किले की बावली में वो हटा दी गई है। लेकिन हाँ, क्योंकि अब एक अंदर मजार और मंदिर आ गया है, अब कंजर्वेशन बहुत मुश्किल हो गई है। और ये प्रॉब्लम शायद हिंदुस्तान भर में है। किसी भी जगह के साथ, किसी भी चीज के साथ हम धर्म को जोड़ देते हैं और फिर अब उस जगह को भूल जाइए। अब हाँ। वो वहां पर किसी लॉजिक की अब जरूरत नहीं है क्योंकि अब धर्म जुड़ गया है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन रिलीजन, दिस इज अक्रॉस ऑल रिलीजन।
इंक्लूडिंग बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, जैनिज्म, सब में यही हो रहा है, पूरी दुनिया में यही हो रहा है आज की डेट में। हमने धर्म में से लॉजिक को निकाल दिया है। तो अगर कोई रिलीजियस साइड साथ में जोड़ दी गई है, अब बाकी सब पीछे रहो, अब जो भी उस रिलीजन के प्रीस्ट है, दे विल टेक ओवर, दे विल टेक ऑल द डिसीजन। सो मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ मुनज़्ज़र जी, बहुत मुश्किल हो जाता है मेंटेन करना ऐसे स्ट्रक्चर्स को। बिल्कुल। जी शगुफ्ता। Right, so let's move on from this interesting story, guys. We have to go on to the next one. अच्छा, ये इतने सारे नाम भी तो है, ये खारी बावली, ये वो दुनिया जहान के एरियाज भी हैं बावलियों के नाम पर। इतनी बावलीज है, आपने डॉक्यूमेंटेशन की होगी, कितनी मुझे है पाँच दिल्ली में? साल लगे, मुझे 5 साल लगे हैं, और इन 5 सालों के अंदर मैं जो 32 बावलियां हैं दिल्ली में, उनकी डिटेल में ले ली मैंने, लेकिन इन 32 बावलियों पे प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मिला। तो पहले 2 साल में लिस्ट तो बन चुकी थी, लेकिन 32 के बाद अब मुझे एक और का पता चला है, 33वीं बावली का भी, अब जाके मुझे पता चला है। तो मैं कौन किताब सी में है रिसेंट वन जो आपने ऐड करी है? ऐड नहीं करी अभी, मेरी किताब में वो आएगी। मुझे उसके बारे में पहले से पता था, लेकिन क्योंकि मुझे कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिल पा रहा था, मैं ऐड नहीं कर पाया। सिलेक्ट सिटी वॉक के बिल्कुल पीछे एक बावली एग्जिस्ट करती है पार्किंग में। अच्छा। अभी उसके कुछ रिमेन्स के बारे में मतलब मुझे बताया गया, लेकिन पुराने रिकॉर्ड्स में उसका जिक्र नहीं मिल रहा है। जो उर्दू की किताबें हैं, सर सैयद अहमद की हो या बशीरुद्दीन अहमद की हो, या हमारे पास इवन मौलवी जफर हसन की किताब में उसका लिस्टिंग नहीं है, जिसकी वजह से मैं उस बावली का जिक्र नहीं कर पाया। तो अगर वो 1910 के बाद बनी तो अलग बात है। तो अभी मुझे उस पर थोड़ा और काम करना है। अभी वो एग्जिस्ट नहीं करती है, पूरी फिल हो चुकी है, जस्ट द नेम सर्वाइव की यहाँ एक बावली हुआ करती थी। अच्छा। 32 बावलियों के बारे में जब मुझे लिस्ट मिली और मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैंने देखा किसी ने बात ही नहीं की है बावली की। कोई राइटर, कोई ऑथर कुछ लिख ही नहीं रहा बावलियों के ऊपर। मे बी दे वर टेकन फॉर ग्रांटेड। सो फिर एक दिन ऐसे सोहेल हाशमी साहब के साथ बैठे हुए, तो उन्होंने ना ये किताब उठाई वाकयात, और इसमें से मुझे कोई लिस्ट में से कुछ चीज पढ़ के सुनाई। तो मुझे लगा कि शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मुझे उर्दू सीख लेनी चाहिए। तो जाके पहले उर्दू सीखी, उर्दू पढ़नी। जब उर्दू अच्छे से आ गई तो फिर ये सब किताबें खरीदी, एक ढेर लगा लिया उर्दू की किताबों का, पुराने, चाहे वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो, चाहे वो पब्लिश्ड बुक्स हो। उर्दू एकेडमी से मुझे बहुत सारा मटेरियल मिला, इनमें मुझे फिर भी काफी इंफॉर्मेशन मिल गई, लेकिन 12-15 बावलियों से ऊपर की इंफॉर्मेशन यहाँ भी नहीं थी। That is the reason that after continuously working for 5 years and after spending several months at ASI archives, several months separately at National Archives and ASI library, मैं सिर्फ एक छोटी सी किताब प्रोड्यूस कर पाया, 170, that's it। इससे ज्यादा मतलब इमेजेस वगैरह सब मिला के इससे ज्यादा मटेरियल मिल ही नहीं पा रहा है मुझे। और अभी मुझे 2 साल से तो डेडिकेटेडली मैं लगा हुआ हूँ। उससे पहले भी 2 साल से मेरी रिसर्च तो चली रही थी। जो मेरी अगली किताब है दिल्ली के फोर्ट्स के ऊपर, 4 साल हो चुके हैं, और 10 में से सिर्फ 6 चैप्टर हैं जो मैं अभी तक लिख पाया हूँ। दिल्ली में किले हैं, सामने खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन एक वर्ड नहीं मिल रहा उनके बारे में। वाह। अच्छा, कौन सा किला है जिसके बारे में एक बड़ा मुश्किल है पता करना? नाई का कोट है तुगलकाबाद के पास। तुगलकाबाद के पास 3 किले हैं एक्चुअली। तुगलकाबाद का किला जो एक शहर है, उसके अंदर एक किला भी है, किलेनुमा शहर है, बेसिकली फोर्टिफाइड सिटी है, सिटाडेल है। उसके बाहर आदिलाबाद है, आदिलाबाद, हाँ, आदिलाबाद कहा जाता था। अब आदिलाबाद का तो जिक्र मुझे इब्ने बतूता के रिकॉर्ड से भी मिला है, और तारीख फिरोज शाही और इन सब के अंदर भी जिक्र आ जाता है, लेकिन उसके पीछे नाई का कोट है, उसका कोई जिक्र नहीं मिल रहा है। बशीरुद्दीन अहमद ये कहते हैं कि आदिलाबाद का जो किला है वो 2 पार्ट में बना हुआ है, तो एक में राजा रहता है, एक में सिपाही रहते हैं। तो जाहिर है नाई का कोट को रेफर कर रहे हैं, लेकिन ये नाम वो यूज नहीं करते हैं। तो ये नाम मुझे पहली बार मिलता है अंग्रेजों के रिकॉर्ड में, जिसमें वो ये कहते हैं कि देयर इज अ बार्बर्स फोर्ट और अ वॉशरमैन्स फोर्ट। अब वो धोबी का या नाई का किला बोला उसको। ये नाम कहाँ से आया, क्यों आया, ASI ने वो नहीं लिखा, क्योंकि जफर हसन ने सिर्फ डायमेंशंस लिख के छोड़ दिया कि इतनी डायमेंशंस हैं और ये इसके साउथ में एग्जिस्ट करता है, दैट्स इट। तो एक इतना सा पैराग्राफ है जिसके ऊपर मैं किताब नहीं लिख सकता। सो आई बीन ट्राइंग टू लुक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जो मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही है। किसी ब्लॉग में किसी मॉडर्न डे ब्लॉगर ने ये भी लिख दिया कि जी आदिलाबाद और नाई के कोट में ब्रिज बना हुआ था। कोई सेंस नहीं बनता उसका, वो ब्रिज बन नहीं सकता, इतनी दूर का कुछ वो सेंस नहीं बनता। इसके बीच पानी का हमें पता है, डैम है बीच में एक बना हुआ। तो आदिलाबाद तुगलकाबाद में ब्रिज था, यहाँ नहीं था।
बट मुझे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस चाहिए, नहीं तो मैं किताब में नहीं डाल सकता उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इस आपको तरह की चीजें कॉरोबोरेट करना पड़ेगा उस एविडेंस को। जी, बिल्कुल नहीं, आई मीन ये जब लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री में बचा क्या है अब लिखने को, आई थिंक दिस इज अ गुड एग्जाम्पल कि आपके सामने है ये किले और आप उनके बारे में पता नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बावलियों को ही अगर आप ले लें तो मैं द्वारका में पता नहीं कितने टाइम तक मैंने ढूंढा, अंबर है के गांव के अंदर बावली है, तेघानपुरी अंबर है की बावली कहा जाता है। अभी वहां पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनी हुई है, बावली एग्जिस्ट नहीं करती। लोहार हेड़ी बावली जो सेक्टर 12 में है वो मुझे मिल गई थी। आई जस्ट शो यू अ फोटोग्राफ। Yes, please. I'm this is very like less known. Let the image load. Come on, you have to be faster. Yeah, thank you. So जब मैं पहली Yes, बार गया था 2012 में, तो ये मुझे कुछ ऐसी दिखी थी। और अच्छा 2012 में ही ऋषि वर्मा ने टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल किया था, 2012 या 13 में किया था शायद वो आर्टिकल। तो इमीडिएटली दिल्ली गवर्नमेंट ने आके, तो दिस इज द ओनली बावली व्हिच इज अंडर दिल्ली गवर्नमेंट, सेक्टर 12 आजाद हिंद फौज मार्ग गंगोत्री अपार्टमेंट के बिल्कुल साथ दीवार टच करती है इसकी, द्वारका अच्छा इंटरनेशनल स्कूल के बगल में है ये। अब उन्होंने ओके ऐसे दीवार को आप देख सकते हैं, गंगोत्री अपार्टमेंट की ग्रे दीवार है जो थोड़ी अंदर तक आ गई है, और गॉट उसके इट। आसपास का पूरा एरिया जो है वो फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने लेकर उसको अच्छे से रिस्टोर किया, इंटैक्ट इन्वॉल्व हुई। दिस इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बाउलीज ऑफ दिल्ली, दैट्स हाउ इट लुक्स नाउ। सो यू कैन सी वाओ यहाँ से, दिस इज हाउ आई सॉ इट आज से 8 साल पहले, दिस इज हाउ इट लुक्स टुडे वाओ, इम्प्रेसिव। आफ्टर हाँ रिस्टोरेशन। और मेरा जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग बाउली जो मेरे लिए थी ढूंढने के लिए, वो थी मुनीरका बाउली उसे बोलते हैं, रिकॉर्ड से मुनीरका बाउली के नाम से आया है। तो मैं गया मुनीरका में, ढूंढना शुरू कर दिया, और मैं कितने महीनों तक मुनीरका में चक्कर मारता रहा, ढूंढता रहा, मुझे बाउली नहीं मिली। फिर मुझे एक रिकॉर्ड हाँ मिला कि 70-80 के दशक में जो मुनीरका का इलाका है उसके बाहर जो ओपन स्पेस है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स वहां बनाए गए थे और उनका नाम रखा गया था रामाकृष्णपुरम। तो फिर जब मैं राइट। आरके पुरम में जाता हूँ, तो आरके पुरम में आई फाइंड दिस अच्छा, ब्यूटीफुल बाउली। just quickly before you 1 minute, so this small Bauli in Dwarka, what's the name? अब उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन इसको अब हम लोहार हेड़ी बाउली कहते हैं। वहां पर बोर्ड में पढ़ेंगे या पब्लिक से पूछेंगे, सब उसको द्वारका बाउली बोलते हैं। बट एएसआई के पुराने 1910 के रिकॉर्ड में, उससे पहले के रिकॉर्ड्स में ये लोहार हेड़ी गांव हुआ करता था। लोहार हेड़ी। हेड़ी इसी तरीके से एक हकीम जी की बाउली है जो कि रायसेना के पास यानी कि राष्ट्रपति भवन के पास है, लेकिन जब राष्ट्रपति भवन और साइड की बिल्डिंग्स बनाई वो सब कवर कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। राइट। और मुझे और उसकी एक कोई रिमेन्स नहीं है अब? उसके वैसे रिमेन्स नहीं है, लेकिन जो हकीम जी का बाग हुआ करता था, गार्डन हुआ करता था, गार्डन में एक पेविलियन हुआ करता था। और आई वाज लकी वन डे, मुझे जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनके बंगले पे कोई इवेंट था जिसके लिए मुझे इनवाइट किया गया था। सो आई वाज वन ऑफ द गेस्ट, एक कोई कैंपेन वो लॉन्च कर रहे थे। तो जब वहां पर मैं उनके बंगले में पहुंचा तो मुझे उन्होंने लॉन में स्टेज बनाया हुआ था, स्टेज पर बिठाया गया। जैसे मैं स्टेज पर बैठा तो साइड में जो पार्किंग छोटी सी लकड़ी का उन्होंने वो बैम्बूस का लगा के पार्टीशन बना देते हैं ना गार्डन के चारों तरफ, मुझे उसके पीछे एक राइट। स्ट्रक्चर दिखा। तो इवेंट खत्म करते हुए उसके पीछे पहुंचा, वहां पर सारे हलवाई बैठ के बनाकर वहां पर मुझे वो स्ट्रक्चर मिल गया। वो मैं एग्जैक्ट बंगला नंबर मुझे एक बार देखना पड़ेगा वो कौन सा, उसके अंदर वो हकीम जी के गार्डन का जो स्ट्रक्चर था वो एग्जिस्ट करता है आज भी। सो बाउली हैज टू बी वाओ। अराउंड, बट इट इज नाउ बरीड। तो ओके, वो तो सो मुझे दिख गया था, कवर कर दिया लेकिन उसको। स्टेज पर बैठने को मौका मिला था मुझे। तो, वाह, लकी यू। तो तो ये हकीम जी की बावली, हाँ। हाँ। सो और ये वाली जो पहले दिखाई थी वो लोहार हेड़ी द्वारका। पहले दिखाई थी। अभी जो मैं दिखा रहा हूँ वो वजीरपुर गुम्बद कॉम्प्लेक्स है। ये जो सफेद बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसे वजीरपुर गुम्बद कहा जाता है, वजीरपुर का गुम्बद। वो वजीरपुर नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसकी कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। ये लोधी पीरियड का ये स्ट्रक्चर है और बहुत ही प्यारी छोटी सी बावली है जिसमें साइड में 2 मीनारें बनी हुई है। द ओनली बावली दैट हैज मिनारेट्स। मिनारेट्स के अंदर बाकायदा वाइंडिंग स्टेयर कहते हैं, सीढ़ियां हैं नीचे तक आने के लिए। अच्छा। और साइड में कमरे नहीं है बट आर्चेज है, क्योंकि आर्चेज बनाने से क्या होता है दीवार को स्ट्रेंथ मिल जाती है। राइट। और दीवार जो अंदरों क्लैप्स नहीं करेगी। जो साइड में आप हरे रंग का कपड़ा देख रहे हैं वहाँ एक मेकशिफ्ट स्कूल है, प्रॉपर कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं है, बट आसपास के गरीब बच्चे बस ऐसे हरे रंग का टेंट सा लगा हुआ है, बच्चे वहां बैठ के पढ़ते हैं। अच्छा, ओपन स्पेस में। कुआं है। हाँ। ये टैंक के अंदर भी एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है छोटा सा। हाँ, टाइम टू टाइम इसको साफ स्कूल किया जैसा। जाता है, फिर लोग जो यहाँ पर आते हैं
टिकटॉक वीडियोस बनाने, वो इसको फिर से गंदा कर जाते हैं। दिस ये कुएं और टैंक के बीच में एक छोटा सा कॉरिडोर बना हुआ है। अच्छा। जो इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है इस बावली की, ऑफकोर्स ये सीढ़ियां और ये सब तो एक बहुत ही यूनिक चीज है इसके अंदर, हम्म। लेकिन जो इसमें मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है वो है ये कुएं की बैक साइड पे इस तरह की एक एक्वाडक्ट बनी हुई है, एक नाली बनी हुई इंटरेस्ट। है। हाँ। तो क्या करते होंगे लोग कि ऊपर चढ़ के ऊपर पत्थरों के ना रिमेन्स हैं, जिससे पता चलता है कि इसके ऊपर एक बड़ा सा पहिया लगा हुआ था, लकड़ी का फ्रेम लगा हुआ था। हाँ। तो शायद बैल की मदद से या किसी जानवर की मदद से, जैसे पर्शियन व्हील घूमता है वो करते होंगे, या अगर हाथ से भी चला रहे हैं, पानी खींच खींच कर जहां वो खड़े हैं बस उसके बगल में वो पानी डालते जाते थे। इसकी स्लोप ऐसे बनी हुई है कि पानी जो है वो पूरा स्लोप पे आके यहाँ पीछे की तरफ गिरता है, और वहां से इकट्ठे होके, यहाँ पे भी एक छोटा सा टैंक है, इकट्ठे होके इस नाली में आ जाता है और प्रेशर से आता है, तो वो काफी आगे तक धार बन के पानी गिरता है, जिससे यहाँ इंटरेस्टिंग। पर आप बाल्टियों की लाइन लगा के रख सकते हो। एक आदमी ऊपर चढ़ेगा, चाहे 10 लोग आए हैं पानी लेने, या वो अपनी शिफ्ट्स लगा सकते हैं, पानी फेच करते रहेंगे और यहाँ पर बाल्टियां भरती जाएंगी। तो किसी को भी वाओ। जाके एक एक बाल्टी फेच करने की जरूरत नहीं है, चाहे साइड में कोई जानवर घूमता जा रहा है, पानी भरता जा रहा है, और बफर वाओ। टैंक वो सब साइड पे बना हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट यहाँ पे है, और इसके बिल्कुल साइड में कुआं भी है। अब मुझे हैरानी ये हुई कि कुआं क्यों बनाया, जब बावली एग्जिस्ट करती थी फिर कुआं क्यों बनाया। तो फिर हाँ। इसको थोड़ी सी और डेप्थ में स्टडी किया, तो ये देखा मैंने कि टैंक के अंदर दे फर्दर क्रिएटेड स्टेप्स, यानी कि राइट। जो बावली का कुआं है वो सूख गया होगा, हाँ। तो टैंक को उन्होंने और गहरा करने की कोशिश की, लेकिन वो एक लिमिट तक गहरा हो सकता है। दे रियलाइज कि अभी और गहरा नहीं किया जा सकता, तो 10-15 मीटर छोड़ के एक नया कुआं उन्होंने खोदा, और फिर वहां से पानी यूज करने लग गए। जब ये पानी, क्योंकि बावली गहरी नहीं है, बहुत ही शैलो है, ये 2 मंजिला है बस, इससे आपको पता चल राइट। जाएगा। छोटी सी हल्की सी डेप्थ है इसकी, ज्यादा नहीं है। यहाँ से आया और प्लेटफॉर्म आ भी गया, हाँ। तो इसलिए इसको फिर और गहरा नहीं कर सकते होंगे, तो इसलिए साइड में कुआं बना दिया। हम्म। दैट्स हाउ इट अपीयर्स। और ये जो आप साइड में मिनारेट्स या टरेट्स देख रहे हैं, उसके अंदर ऐसे सीढ़ियां हैं जो वाइंडिंग स्टेयरकेस है, घूम के पूरा नीचे तक जाती है। वाह, ये तो मतलब देखने लायक है। दिल्ली में 1317 मॉन्यूमेंट्स हैं जो रिकॉर्ड किए थे जी। जफर हसन ने, जी। उसमें से 700-750 आज भी मौजूद है। मैं अभी तक पिछले 11 साल में करीब 450 डॉक्यूमेंट कर चुका हूँ। वाह। उसके बाद फिर मैं गुड। अपना टीचिंग लाइन में चला गया, तो मुझे अब उतना टाइम नहीं मिल रहा है फील्ड में जाने का, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कर रहे हैं। और बाउलीज को तो खासकर अभी भविता जी ने भी कमेंट किया, शी इज ऑल्सो वॉचिंग। सो भविता सक्सेना इज डूइंग अ वंडरफुल वर्क ऑन बाउलीज, एटलीस्ट डॉक्यूमेंटिंग दीज बाउलीज। आवर फ्रेंड फिलिप इज running this project called Stepwells, stepwells.org। तो फिलिप एरेस ने एक डेटाबेस बना दिया दुनिया की सारी स्टेपवेल्स का, मोस्ट वाह। एग्जॉस्टिव डेटाबेस। और इंडिया की स्टेपवेल्स पॉपुलेट करने के लिए भविता जी ने बहुत काम किया उसके अंदर। दिल्ली में हम लोग बल्कि द्वारका की जो अंबर है ही बावली है, उसको ढूंढने के लिए इकट्ठे निकले थे, काफी गाड़ी अरे घुमाई, वाह। पर हमको नहीं बावली। ऐसे दोस्त मिल जाए तो मतलब काम करने में बहुत अच्छा लगता है, जी, बिल्कुल। रस आता है। Okay, do we have time, Vikram, for one more Bauli? Why not? How about I take actually what I can do is मैं quickly एक राजों की बावली का जिक्र करता हूँ थोड़ा सा, और फिर आपको एक Hmm. और बावली के बारे में बताते हुए we can end this session. So Super. राजों की बावली, जैसे मैंने बताया, नाम पड़ जाता है राजों से या राजमिस्त्रियों से। तो जी। ये जब मैं पहली बार गया था तो ये बावली मुझे कुछ इस तरह की दिखी थी। However, in all the British era records and even before British, जो इस बावली की ड्राइंग मुझे मिली है, इसकी जो वो ड्राइंग कुछ ऐसी सी मिली है। ये वो इलस्ट्रेशन है, इसमें आप 3 लेवल देख सकते हो, 3 मंजिलें। जबकि मैंने जब ये बावली पहली बार देखी मुझे 4 मंजिलें दिखी थी। तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों बना हुआ है। ये अंग्रेजों की ड्राइंग है, मैंने उसको ट्रेस किया हुआ है। तो ये मुझे अंग्रेजों के टाइम की तस्वीरें मिली। दिस इज 1908। तो उन्हें पता ही नहीं था चौथी मंजिल एग्जिस्ट करती है। ये अब जाके एएसआई ने जब खुदाई की तो चौथी मंजिल अंदर से निकली है। ये महरौली का पूरा नजारा आप देख सकते हो। Incredible. तो 3 ही मंजिलें अंग्रेजों के टाइम पर पता थी हमें, सो इसलिए 3 मंजिलों के बारे में हमेशा उन्होंने लिखा। लेकिन जब मैं 2009 में यहाँ गया था तो मुझे 4 मंजिलें दिखी थी, पानी नहीं था। ये 2011 की तस्वीर है, थोड़ा सा पानी नजर आ रहा है।
हम्म। और साइड में गेट हुआ करता था जो अभी बंद कर दिया गया है। हम्म। दिस इज अ मोर रिसेंट फोटोग्राफ, दिस इज फ्रॉम, नहीं दिस इज आल्सो फ्रॉम 2011। पानी भर गया है। अच्छा, पानी भर गया है। और ये मैंने बताया साइड में जो कमरे हुआ करते थे वो बंद कर दिए थे, मिस्त्री रह रहे थे। और मिस्त्रियों के टाइम पर हमारे पास सर सैयद अहमद खान ने अपनी किताब सर सनादीद के अंदर जिक्र किया है कि जो मिस्त्री हैं उन्होंने बगल की जो मस्जिद है जो पीछे ऊपर बिल्डिंग नजर आ रही है उसे अपनी रसोई बना रखा है। तो हम्म। उसके अंदर रसोई बनने की वजह से पूरी वो काली हो गई है। ये पीछे उसका कुआं है। ये आई जस्ट टॉक अबाउट दिस। ये मस्जिद आप राइट। देख सकते हैं में जो कालिक है सर सैयद के हिसाब से ये रसोई के धुएं की वजह से कालिक आई हुई है। ओके। सो दैट वी स्टिल हैव देयर। और जो अभी हमने टूम्ब देखा तो ये जो मकबरा है ये दौलत खान का है जो लोधी के टाइम पे गद्दी पर बैठ अपना गवर्नर बन जाता है लुधियाना की पूरी बेल्ट का। लुधियाना वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया क्योंकि जैसे ही आप सतलुज पार करते हैं तो फिर आप हिंदुस्तान में एक अलग लेवल पर आ जाते हैं क्योंकि आप पीछे सारे मेजर रिवर जो सिंध नदी है सबसे बड़ी है वो पार करके आगे आ गए हैं। आपने ब्यास पार कर लिया है, अब सतलुज भी पार कर लिया, अब कोई दरिया बचता नहीं है दिल्ली तक, तो दिल्ली तक आप सीधे आ सकते हो। तो ये जो एरिया था सरहंद और लुधियाना का ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था। जब इब्राहिम लोधी का दौर आता है तो दौलत खान को गवर्नर तो बनाया हुआ है लेकिन दौलत खान को ये पता चलता है कि भैया मेरे को जो है ये हटा दिया जाएगा। इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी को तो प्रॉब्लम नहीं थी, उसने मुझे बना दिया, बट उसका बेटा मुझे पसंद नहीं करता है। सो राइट। इब्राहिम सो दौलत खान क्या करता है, दौलत खान दिल्ली आता है क्योंकि लोधीस आगरा से रूल कर रहे थे तो दिल्ली में कोई किंग ऐसा बैठता नहीं था। तो पंजाब वाला बंदा यहाँ आ जाता है, यहाँ आके ये बावली बनवाता है। मेहरौली वाज द मेन पॉपुलेटेड एरिया उस टाइम पे। ये बावली बनवाता है, अपने लिए टूम भी डिसाइड कर लेता है शायद से। वी डोंट नो वेदर ही डिसाइडेड और नॉट, बट मस्जिद और बावली बनाकर उस समय की सबसे खूबसूरत स्ट्रक्चर वो यहाँ बनवाता है और ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि मेरी जो एम्पायर है वो यहाँ तक है, मेरी पावर है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास आर्मी है, सो द लोधी एम्पायर शुड लिसन टू मी। लेकिन उसका कोई असर नहीं होता इब्राहिम लोधी के ऊपर। तो दौलत खान क्या करता है, ही राइट्स अ लेटर टू बाबर इनवाइटिंग हिम टू अटैक लोधी। राइट। बाबर in his records, बाबरनामा में he mentions that there is some guy called दौलत खान जिसने मुझे 2-3 बार खत भेजा है। तो बाबर सेज कि मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा, बट आई एम श्योर उसने पढ़ा होगा तभी तो वो पूरी, क्योंकि ये उस बंदा उसको इनवाइट कर रहा है तो जाहिर है कुछ तो देगा कि ऐसे आओ, ये करो, ये करो। तो दौलत बाबर के रिकॉर्ड में हमें उस लेटर का जिक्र मिलता है बाबरनामा के अंदर। सो व्हेन ही कम्स, वो दौलत खान पर कोई ध्यान नहीं देता बाबर। Eventually Daulat Khan dies and he is buried over here. So he is the guy who brought Mughals to India. Wow, yes. No, I remember that little bit, but it's very interesting when you connect the dots. जी, खत्म करते करते एक और बावली के बारे में बता देता हूँ। बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है हुमायूं के मकबरे में। Yes, yes. हुमायूं के मकबरे के अंदर हम लोग अक्सर जाते हैं, लेकिन हम किसी भी मॉन्यूमेंट में जाकर क्या करते हैं, गेट से टिकट लेते हैं और सीधा मेन बिल्डिंग तक टच करके वापस आ जाते हैं, आसपास वेंचर आउट नहीं करते। हुमायूंस टूम्ब कॉम्प्लेक्स इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट स्मॉल कॉम्प्लेक्सेस। घुसते ही राइट साइड पे ईसा खान नियाजी का कोटला है, बाहर की दीवार है, मस्जिद है, ऑक्टेगोनल टूम्ब है, हिंदुस्तान का सबसे पहला गार्डन टूम्ब है वो। उसके बाद बू हलीमा का मकबरा आता है, वो एनक्लोजर आता है जिसमें कि पीछे की दीवार टूटी हुई है जहां से हम एंटर करते हैं, क्योंकि एक्चुअल दरवाजा दूसरी साइड पे है, तो हम टूटी हुई दीवार से एंटर करते हैं एक्चुअली। पार करते ही फिर राइट साइड में बड़ा सा गेट आता है जिसे हम अरब सराय का गेट बोलते हैं। जब आप उस गेट में एंटर करते हैं तो वहां पर आपको अफसर वाला टूम, अफसर वाला मस्जिद नजर आ जाती है। लेकिन उसके साइड में बहुत बड़ा सा पार्क टाइप का एरिया है, पेड़ लगे हुए हैं। आप वो पूरा पार करके पीछे की दीवार की तरफ जब जाएंगे तो वहां पर एक छोटा सा गेट है, तो यहाँ खड़े होकर नजर भी नहीं आता। जब आप उसको उसके अंदर घुसेंगे तो पीछे बहुत बड़ी मार्केट है पुराने जमाने की। जी जी, बहुत बड़ा एरिया है, उसको बोलते हैं मीर भानु की मंडी। बिल्कुल। नाम पे जस्ट होल्ड ऑन टू द नेम, क्योंकि जब मैंने अपनी किताब में लिखा था मीर भानु की मंडी, क्योंकि मुझे ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में मीर भानु की मंडी मिला, तो हाशमी साहब ने किताब पे, सुहेल हाशमी साहब ने भी 2-3 महीने लगाए हैं इस बुक के ऊपर। जी जी, पूरा एक लाइन को उन्होंने रीड किया, एडिट किया, क्रॉस किया, डिबेट्स हुई हमारी कि अगर ये लिखा है तो क्यों लिखा है। मुझे एक एक चीज पहले उनको प्रूव करनी पड़ी और कईयों से मेरे डिस्कशंस हुए। सो हाशमी साहब कहते हैं मीर भानु नाम जच नहीं रहा है। जहांगीर के टाइम का एक यूनिक है, एक हिजड़ा है, ख्वाजा सरा है।
अगर ख्वाजा सरा है तो अंग्रेज उसका असली नाम शायद लिखने से कतरा रहे हो, क्योंकि अंग्रेजों को फेमिन उनके उनके माइंड का जो अपना जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है वो एक अलग ही लेवल पर पहुंचा हुआ था। शायद वो इसका असली नाम, कहते हैं हो सकता है इसका नाम मेहरबानो हो। उन्होंने ये कहा कि आप जाके दोबारा देखिएगा। तो फिर मैं आके जब मैंने दोबारा से ध्यान से पढ़ा तो मुझे उर्दू के रिकॉर्ड में नाम मिलता है मेहरबान आगा। मेहरबान आगा की मंडी थी। मेहरबान आगा से मिहिर भानो कैसे हुआ मुझे नहीं पता, बट रिकॉर्ड में मिहिर भानु की मंडी फेमस हो गया। राइट। और उन्हीं रिकॉर्ड में मेहरबान आगा का जिक्र अलग चैप्टर में अलग लेवल पे आता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुई हुई है। वो कहते हैं कि उन्होंने एक मंडी बनवाई जहांगीर के दौर में, अरब सराय के साथ जुड़ी हुई, और मंडी में मस्जिद बनवाई। मस्जिद के नीचे उन्होंने सीढ़ी नुमा कुआं बनाया। तो ये मस्जिद का जो मेरे को अंदाजा लग पाया, एक ही स्पॉट है जहां मस्जिद हो सकती थी, क्योंकि इसी की आर्चेज इतनी स्ट्रांग है कि इसके ऊपर एक बिल्डिंग बन सकती थी। बाकी सब जगह सॉलिड है और यही जगह है जहां सीढ़ी नुमा कुआं है। मस्जिद वहां से खत्म हो गई टाइम के साथ। नीचे कुआं बचा हुआ है और उसकी सीढ़ियां बची हुई हैं। और बहुत छोटा सा ही स्ट्रक्चर है। अभी आगा खान फाउंडेशन ने इसको फिर से रिस्टोर किया है। ये तस्वीर जो है ये 2011 की है। अब इसको और थोड़ा सा क्लीन अप करके साफ करके पानी को वापस इसमें रिस्टोर कर दिया गया। वाह। ये दिल्ली की सबसे छोटी बावलियों में से एक, लोहारहेड़ी बावली, और ये दिल्ली की सबसे छोटी बावलियों में से दो है। इंटरेस्टिंग। आई थिंक दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि लोग, सही बात है कि काफी लोग जाते हैं और देख नहीं पाते। हमको तो भी ये किसी के साथ हेरिटेज वॉक पे पता चला था, उससे पहले तो पता ही नहीं था। अच्छा जी। ये लोहारहेड़ी तो जाना पड़ेगा, मुझको लग रहा है कि ये आरके पुरम और ये तो देखना ही पड़ेगा। मतलब अब बहुत बुरा लग रहा है कि दिल्ली में रहते हैं और हम लोग बिल्कुल नहीं जानते। शुरुआत में ही आई हैव गिवन अ लिस्ट ऑफ ऑल द बाउलीज वेयर दे विद देयर लोकेशन एंड देयर कंडीशन, क्या कहां पर है, कैसे पहुंच सकते हो, और अभी वो एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं, बरी कर हो गई हैं, एक्सेस में परमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए। कुछ एक है जिनको परमिशन लेके ही आप अंदर जा सकते हो। अच्छा, एक बात बताएं कि सबसे अनलाइकली जगह पे जो बावली है वो कौन सी होगी? मटिया महल। मटिया महल के अंदर एक मस्जिद है, उसके नीचे एक बावली है जिसे कहा जाता है बंजारों की बावली। और वो पूरी तरह से सील हो चुकी है, पूरी कॉलोनी बस गई है, लेकिन एक छोटी सी खिड़की है, उसमें से सर ढाल के झांक के देख सकते हो। नीचे बावली दिखती है जमीन के नीचे, और पाइप डाले हुए पानी फेंच हो रहा है। खारी बावली वाला हिसाब है, जैसे खारी बावली के ऊपर बंद करके ऊपर मार्केट बन गई है, स्पाइस मार्केट बनी हुई है। कभी खारे पानी की बावली हुआ करती थी वो, अभी वो खारी बावली बस मार्केट का नाम बचा है, असली बावली को भर के बिल्डिंग बन गई है उसके ऊपर। सो वैसे तो मटिया महल की बावली, ये जो मटिया महल की बावली, इसका नाम अगर वहां किसी को बोलोगे किसी को नहीं पता। अंदर गलियों गलियों में जाके मिलने वाली है ये। और पुराने रिकॉर्ड्स में इसे बंजारों की बावली के नाम से जाना गया है, लेकिन क्या है बंजारों की बावली, क्यों नाम पड़ा, वी हैव नो आइडिया। और वहां किसी को बोलोगे यहाँ बावली एग्जिस्ट करती है, वहीं के लोगों को नहीं पता। जैसे आपने बताया कि मस्जिद के नीचे है। जी, मस्जिद के ऊपर एक छोटा सा होल है, उसके अंदर झांक के आपको पानी नजर आ जाता है नीचे। राइट। तो उसमें ये भी ढूंढनी पड़ेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने पाइप डाले हुए और मटिया महल को पानी आसपास को वहीं से सप्लाई होता है। अच्छा, देखना पड़ेगा अब ये जा करके। वो भी मुझे देखने का मौका मिला था। उन्होंने सुहेल हाशमी साहब भी ढूंढते हुए गए थे, तो मैं उनके साथ ही चल रहा था, तो मुझे वो ढूंढने का मौका मिला। तो मैं, सुहेल हाशमी साहब और एक और हमारे मित्र थे, हम 3 जाने, और वहां के किसी लोकल ने, उनके किसी फ्रेंड ने हमें उसके बारे में बताया था, और फिर उनके साथ हम उस जगह को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे थे। मैंने भी सोहेल साहब के साथ काफी चीजें ओल्ड दिल्ली में डिस्कवर करी थी, और एक दोस्त थे उनके भाई सलीम, उनके साथ में हम लोग घूमते थे, तो वो भी अच्छे दिन। एंड टू ऑल्सो उनको खाने का बहुत शौक था। अब अभी बहुत साल से मैं घूमी नहीं उनके साथ में, लेकिन हम लोग लोकल खाना खाते थे वहाँ। हाशमी साहब के साथ सबसे अच्छा किस्सा ये हुआ कि उस दिन एक हवेली के अंदर हमें जाने का मौका मिला, और वहां पर वो खड़े हुए और काफी देर तक देखते रहे और अंदर लोगों से बात भी करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, बचपन में इस हवेली में रहा हूँ, कभी उनके बुआ जी की हुआ करती थी शायद से। तो वहां जाके उन्हें याद आया, अपनी बचपन की मेमोरीज आई। तो उस तरह के बहुत अच्छे किस्से हैं जो हमें उनके साथ देखने को मिले। इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। आज मतलब इट वाज
मतलब कि आपको मैं बताऊं कि दो फीलिंग्स आ रही है। एक तो थोड़ी शर्म आ रही है कि मैं दिल्ली में रहते हुए इन चीजों में इंटरेस्टेड होते हुए इतनी बावलियों में नहीं गई हूँ। मैं बस वही जो मेहरौली वाली बावलियां हैं या अग्रसेन की बावली है या जो हमारी हुमायूं वाली है, हुमायूं के किले वाली है, बस यही सब देखी है मैंने, और लाल किले वाली। बट ये द्वारका में बावली थी, आई कुड नेवर इमेजिन, आरकेपुरम मटिया भी महल की। आरकेपुरम जी। जाके आराम से, आरकेपुरम में जाइए, वहां जाके आराम से बैठिए, ज्यादा रिलैक्स होंगे। लोग बाहर योगा कर रहे होते हैं, काफी कुछ वाह, एक्टिविटी चल रही होती है, बहुत पीसफुल है नाइस, आरकेपुरम सो वी वाटर कुड पार्क। डू दैट, we could प्लीज डू। certainly do that, and thank you so much। तो बस जैसे मैंने बताया ना, शर्म भी आ रही है और एट द सेम टाइम आई एम एक्साइटेड कि अब ये जाएंगे, अब यहाँ पर जाना पड़ेगा। सो so we have to thank you for enlightening us today, Vikram. It was wonderful. Thank you so very much for this, and keep doing the great work that you're doing. I look forward, and Ganga Jamuni looks forward to your next book on the Killas or the forts of Delhi. And until then, um, thank you again. Have a great थैंक evening, यू, everyone. थैंक यू। Thank you all for joining us on Ganga Jamuni. On Varsha Mangal, we'll be back again next weekend. We have the Ashtanayika series. We also have food and a lot of stuff that comes along with it. This is for the next weekend. See you next Friday. Have a great evening.